Can I request everybody to please settle down? So thank you so much for being here on time. And we have with us Professor Parimal Merchant from Dubai, who specially come for us. So friends, can we have a big round of applause for Sir, who's taken out his valued time. And we all know, most of us, many students are here. I have received many PMs from them. That's a great session, and I'm sure we all will be learning a lot from the session today. Waiting on, we have few prospects, so we'll start with a small video of ICBI, of past events, so that we can know about ICBI, and sir would also be knowing. Sir, this is a 4-year-old non-profitable movement, sir. We are 300 plus entrepreneurs at the moment, all MSME, basically at the age around 45, sir. And our motto, let's connect with trust to grow. Trust, which is the most important part of our movement, where we ensure that each and every member is approved by the existing members what we have in the group, and that is what we have been doing. So we have a small video of the past events what we have done, and then we can take it up, then we'll take it up. I am sure tomorrow, when there will be mankind in Mars, the first chamber to open in Mars will be ICBI. Proximity is power. We are the average of our 5 closest friends. The company that we... You call it We Talk, We Learn, all these sessions. I've gained a lot of knowledge by attending these sessions. ICBI pays very close attention to what their members want and need and reassess what they offer. With ICBI, I found that ICBI has helped me tremendously in building my network. You can join ICBI is by being into business and you being introduced to ICBI through trust of another businessman. Most critical thing for an entrepreneur is to be on the learning curve always. And we believe in this, that's why we learn from each other through various learning sessions. ICBI is also to learn about the various development and technologies of different industries in the world. Confident entrepreneur, you have to be working very closely with the government departments and with the authorities. ICBI is a platform which gives you an opportunity to interact with all these government organizations and to put forth your concerns and to get the results.
ICBI provides a great business opportunity for new businesses. There are people from different sectors and different verticals in different chapters. So there is a great opportunity for members to collaborate with each other and grow their business through new business opportunities. I've made friends here, I have made clients here, and I enjoy being an ICBI. I think every entrepreneur and every business head should be joining ICBI right away, wherever they are in the world. Thank you, friends. The event today has been executed, organized by our very own ICBN Harsh Khemka. So can we have a big applause for Harsh also? Thank you, Harsh. I'll invite you to introduce sir and take it forward. Good afternoon, everyone. I welcome you all to this special session with none other than Dr. Parimal Merchant. Dr. Merchant is a stalwart in the field of education and does not need any introduction. However, just to share a brief overview, Dr. Merchant is the director with SP Jain School of Global Management, Dubai, Mumbai, Singapore, and Sydney, in charge of the Global FMB, a distinctive 12-month management program for sons and daughters of business families. The topic of research for his PhD from BITS Pilani was inducting the next generation members in family business in Indian and SME context. On the same subject, he has published articles in international journals. He has over 30 years of association with management education, from which 25 years specializing in the area of creating focused programs, adapting management education to the context of family managed business. Over the years, by interaction with over 6,000 students from family businesses, he has developed matchless insights into the family business culture of Asia. He has given various conferences on the issues of family managed business. In the area of family businesses, he has created management programs not only for the children, but also for the fathers from families known as GOMP, and for the first time ever, program for mothers from business families. He's the advisor to the Asian Institute of Family Managed Business, which is a non-profit initiative to get sons and daughters of family businesses excited to join family business at young age. Sorry. He is the advisor to and jury member in Singapore-based Startup O, a global new venture creation support system. He has been involved in profit movement consultancy projects for nearly 40 years and has been involved with nearly 100 companies, both SME as well as corporates. He has coordinated projects of development of corporate citizenship, guiding students to provide consultancy to over 300 NGOs.
He has created unique practical courses such as Learning Management, Management for Results, Trilogy of Finance, amongst many others. He graduated from Mumbai with Bachelor in Commerce and Law, completed his ICWA in 1982 and his PhD in 2018. He has been actively involved in the humanist movement for more than 40 years, working for global cooperation for better society and better personal life. Sir, it's a complete honor to have you amidst us today, and I'm sure the members and participants present today will have a lovely takeaway and learning for life. Thank you. May I request Mr. Vikram Poddar and Skantyagi for the memento, please. Thank you. Thank you. अभी नहीं मैं बोलूँगा तभी चालू करना. I was working just 2 days ago with a family in Mumbai. 2 भाई हैं, 40 plus है. बड़े भाई ने बोला अलग होना है. And more or less there is some dispute about on what point to settle something. That is why they got me involved. अभी मेरा तो चीज़ अलग है कि मैं I understand कि जो लोग बोलते ना उसके पीछे कुछ और होता है. तो मैंने बोला तू बोल रहा है अलग होना है, लेकिन उसके पीछे क्या है ना वो मुझे जानना है. तो कुछ नहीं है. Then finally the whole thing turned and now they don't want to be separate because of one point which they had missed out and which I brought out. I said that look, 2 भाई है, father mother है, and father mother are living with the other brother. Now this elder brother is not talking to father. I said look, you have lost your parents. Now you are losing. Your children have lost their grandparents. And most important thing is that your children are going to lose the cousins. Because जहाँ पे भी separation होता है ना, वहाँ हमारे जितने student आए हैं जो separation वाले हैं, सबका एक ही line है. मेरे uncle ने मेरे father को धोखा दिया. Because obviously they hear only one side of the story. And do you have a right to snatch away the relations from your children? Because you are saying that you want to separate for what? Are you ultimately have some responsibility towards your children or only about me? Now this guy immediately changed the whole perspective, but why it worked with him and it will not work with some others is exactly the point I was telling others, that India has changed dramatically from the year 2000. If the similar program was arranged in the year 2000, we would introduce ourselves as businessmen. Today it is a shameful word. We have to call ourselves entrepreneur. Now I have no objection. Call yourself whatever you like and you have to follow the fashion. But the point is, there is a big difference between the two. What is the meaning of business and what is the meaning of entrepreneur? Business was to make money. Entrepreneur is to talk about glamour. And that made a very, very big difference.
There are 3-4 things that have happened from 2000. In the year 2000, जो लोग business करते थे, मैंने देखा है because I am working from 76. So I will tell you the entire Indian business journey and why and how we have ended up at this rotten stage of business today in India. Of course, I cannot tell you anything about Calcutta business people, you all, but I can tell you in general what is happening in India. In India, business people don't work. That's it. Now, what has happened? In the year 2000, show came Kaun Banega Karodpati. And it was a super big figure, crore. Because in the year 2000, a lakh was considered as a very big thing. I bought my flat in 1992 at 8 lakhs, and in the year 2000, it has appreciated it to 25 lakhs. So lakhs was a big thing. But that is how the journey started. Something happened which most of the people in India don't understand what happened, but they think that it happens only in India. So it's okay, no problem. Something happened in 2002 onwards. Business ऐसा चला कि हर बिजनेसमैन एक ही चीज बोलता है, हमने इतना पैसा कमाया जो हमने सपने में भी नहीं सोचा था. The reason was simple. 2000 के पहले सपने भी हम लाख में ही देखते थे. अभी जब हम बात कर रहे हैं तो करोड़ की बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली नथिंग बिकॉज ऑफ आवर स्मार्टनेस. कभी कभी क्या होता है, वेव ऊपर जाता है ना, आपकी बोट है, वेव ऊपर जाता है तो आपकी बोट भी ऊपर चली जाती है. और इंडियन फैमिली बिजनेस को ये बराबर मालूम है. ये आज जहां पे मैं पहुंचा हूं ना, मेरे में कैपेसिटी नहीं है, ये तो मैं आ गया. अभी अगर नीचे गिरूंगा तो वापस नहीं खड़ा हो सकता हूं. हवा निकल गई उसके लिए बिजनेस वालों की, कुछ करते नहीं है. नाउ added further, 2003, a movie called Bagban, a movie that corrupted the entire Indian business, Indian family culture. बच्चों के ऊपर भरोसा नहीं रख सकते. Till 2000, everyone worked for family. हम लोग जब बिजनेस में काम करते हैं ना, किसी ने ये नहीं सोचा था कि मैं मेरे लिए काम कर रहा हूं, मैं परिवार के लिए काम कर रहा हूं. I have my responsibility to my family. Till year 2000, it was all family. If you ask your father, that generation would talk about father expire ho gaya, elder brother will make sure that everybody is settled. Till year 2000, everyone in business talked about the family. 2003 ने बोल दिया, आप बच्चों के ऊपर भरोसा नहीं रख सकते. और बच्चों को भी डर आ गया, क्या पता फादर वो सलमान खान को पैसा दे दे तो. This distrust started, and instead of family, I started. And then came 2007, another movie, Three Idiots. It was such a well-made movie that director thought that people may get impressed and get carried away. So let me tell you upfront, they are idiots, don't follow. But exactly opposite happened. Suddenly in the whole society, word came, follow your passion. Forget about your family, forget about anything. You have no responsibility to anyone, only you are the center of the world. Follow your passion. Look at that movie. You have hero, Amir Khan. Family में आगे पीछे कौन है जानते हो? Nobody knows. किसी और के लिए एग्जाम में बैठता है, पास हुआ तो भी क्या, फेल हुआ तो भी क्या. इसको रोल मॉडल बना दिया हमने. He will advise and everybody will follow. Then comes Madhavan. फादर पीएफ के सामने लोन लेके लैपटॉप देता है. पीएफ के सामने लोन लेने का मतलब क्या होता है? आई एम मॉर्टगेजिंग माई फ्यूचर फॉर यू. उसको अपना हीरो जाके क्या बोलता है? अरे यू हैव अ पैशन फॉर वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी, व्हाई डोंट यू गो. वो मूवी देख के हमारे 2 स्टूडेंट वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में चले गए. इट इज ओनली आफ्टर 4 थप्पड़ पड़ती है ना, तभी समझ में आ जाता है कि ये घर नहीं चल सकता है. फोटो हॉबी के लिए अच्छा है. एंड देन देयर इज जोशी, पुअर फैमिली, फादर इज वेरी सिक एंड ही इज सो वीक ही कैन नॉट स्क्रैच हिमसेल्फ. वाइट बेलन से चेस्ट को स्क्रैच करती है. द हेयर फ्रॉम द चेस्ट गोज ओवर टू बेलन, फ्रॉम बेलन इट टू रोटी. Amir Khan eats the roti and the whole audience laughs. You are laughing at what? The poverty of that family, right? The joke that is for you is the roti that family eats day in, day out with only one hope.
ये लड़का हमको बाहर निकालेगा। और उसको अपना हीरो जाके क्या बोलता है, देख हमने कैसे चमत्कार कर दिया है ना, चमत्कार का बलात्कार कर दिया। कम ऑन टेरेस, ड्रिंक एंड डांस, एवरीथिंग इज, ऑल इज वेल। The whole thing is that there is something called responsibility. And that whole idea of responsibility started vanishing from the families. Now suddenly everybody says, I will want to do myself. And then along with that came another line, I want to do something of my own. What a stupid notion. Were you born on your own? From where does this kind of ideas come? From movies like this. Without सोचे समझे लोग पकड़ लेते हैं। एक बार हमारे यहाँ स्वामी जी आए थे, ये अपना कॉलेज में बैठता था, तभी एक बार स्वामी जी आए थे क्लास में। स्वामी जी भाषण दे रहे थे, ये लोग तो, ये हमारा स्टूडेंट MBA बोलते हैं तो प्लेसमेंट कितना मिलेगा, पैसा कितना मिलेगा, उसकी बात, और स्वामी जी बात कर रहे हैं, क्या पैसे पैसे की बात करते हो। तो स्वामी जी का लेक्चर खत्म होना, बहुत तालियां बजी। तभी से मैं एक चीज समझ गया, भाषण के बाद में जब तालियां बजती है ना, तो दो रीजन हो सकता है, थैंक गॉड भाषण खत्म हुआ, या भाषण अच्छा था। एनीवे, उनको फिर ग्रीन रूम में लेके गए, और हमारी कॉलेज तो एकदम इकोनॉमी में मानती है, एवरीथिंग स्टूडेंट्स हैव टू मैनेज। एक स्टूडेंट ने स्वामी जी को चाय दिया, स्वामी जी ने बोला अरे बहुत अच्छा है, किसने बनाया? लड़के ने बोला मैंने बनाया। क्या बात करते हो, कैसे बनाया? टोप लिया, उसमें पानी डाला, फिर एक मिनट धीरे धीरे बताना, टोप में पानी लाया, तो पानी कैसे बनाया? मैंने पानी नहीं बनाया, पानी टेप में आया। कोई बात नहीं, तू टेप में कैसे लाया? मैं नहीं लाया, वो रिजर्वॉयर से आया। ओके, रिजर्वॉयर में तू कैसे लाया? मैं नहीं लाया, वो बारिश आया। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर मैंने दूध डाला। आप पूछो ना, उसके पहले मैं बोल देता हूँ, दूध मैंने नहीं बनाया, दूध डेयरी से आया, डेयरी में मैं नहीं लाया, वो गाय से आया, गाय को मैं नहीं लाया, गाय ने घास खाया। अभी तो खाली दूध और पानी हुआ, अभी तो चाय पत्ती बाकी है, अभी तो शक्कर बाकी है, और चारों मिलता है ना तो चाय नहीं बनती है, फ्यूल लगता है। इंसान जब एक कप चाय खुद नहीं बना सकता है, कहां से ये नोशन आ गया, आई वॉन्ट टू डू समथिंग ऑफ माई ओन। 2000 के साल के पहले कभी किसी की ताकत थी ऐसी बात करेगा, घर में झापट पड़ती थी। सडनली नाउ वी हैव बिकम वेरी सोफिस्टिकेटेड। अभी मैं किसी को कल मिला, I don't know whether my son will join my business or not. Very good. And the son also does not know whether he will join his business or. Can you imagine before 2000? कोई सवाल ही नहीं है, धंधा ही करना है, nothing else. कितना क्लैरिटी था, कितना लाइफ इजी था, and now it has become everyone. तो आज की तारीख में क्या है? 80% of the sons and daughters in early college are very clear, जिंदगी में कुछ भी करेंगे other than family's business. BBA करते हैं, पता चलता है BBA के बाद में तो कोई जॉब नहीं है, फिर MBA करते हैं, फिर क्या करेंगे? प्लेसमेंट लेंगे, 2 साल जॉब करेंगे ना, बाद में पता चलेगा इतना मजा नहीं है जितना हमने सोचा था। अभी ये वर्ल्ड टूर करके अभी धंधे में आते हैं। 60% ऑफ द पीपल टुडे जॉइनिंग फैमिली बिजनेस आर कमिंग आफ्टर द वर्ल्ड टूर। अभी वर्ल्ड टूर का प्रॉब्लम क्या है? आपने तो लंदन आई देखी है, लेकिन लंदन में भी गटर होती है, और अगर गटर जाम हो गई ना तो लंदन का कोई ग्लैमर नहीं रहेगा। तो लंदन आई दिखता है, घर का फैमिली बिजनेस का प्रॉब्लम दिखता है। दे डोंट रिकॉग्नाइज दैट एवरी बिजनेस हैज इट्स ओन चैलेंज। एंड देन फाइनली आके सीधा फादर के कंसल्टेंट बन जाते हैं। यू नो, यू शुड डेलीगेट। हाँ ठीक है भाई, तू मैनेजर रख ले, कितना पगार दूं? हम तो 40,000 से, अरे पीनट्स दोगे तो मंकी मिलेंगे ना। तेरे हिसाब से सबको पगार दे दे तो धंधा जीरो हो जाएगा। तो एक काम करना, तू तेरा कर, मुझे मेरा करने दे। 4 साल तक चलेगा। बाय द टाइम दे आर 30 देन दे रियलाइज दोनों में थोड़ी बहुत अक्ल है। दिस इज द स्टोरी ऑफ आवर फैमिली बिजनेसेस। प्रेशियस years of life are gone thinking about my own. Nothing happens on your own. And this whole thing about private equity and unicorn and all, उसके पीछे simple story है। But the whole thing is people are refusing to see the story because glamour में मुझे सब मालूम पड़ गया। Baiju is what? Uber is what? Ola is what? They are the pawns for somebody else who wants to play the game. And they are playing games in billions of dollars. They need somebody in front, so they are just in front. They are not business. और उसके लिए मैं बोलता हूँ,
बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप बहुत अलग चीज है. बिजनेस मीन्स बिजनेस, सीधी सीधी बात है. बिजनेस मीन्स ट्रांसफरिंग मनी फ्रॉम योर पॉकेट टू माई पॉकेट. And there is no other way. I cannot show you knife, I cannot put gun. There is only and only one way. You should happily give me money. So business was very focused. The word entrepreneur means, they created a new word, burning rate. You know, our burning is only this much. मतलब घाटा कर रहा है बोलना. Now I am telling you third thing that has happened over a period of time. These are the reason why I tell you that Indian businesses have come at a very, very sad stage. The third thing happened is, in the year 2000 or till the year 2000, everyone in India was born with a richness of at least 100 relatives. People from my mother's side, people from my father's side, my mother's mother's side, my mother's father's side, father's mother's side, father's father's side, all taken together, every one of us 100, and we used to meet. And because we used to meet, we never felt that we were alone. We always felt that we are supported. And then we had Maheshwari community. So Bombay में Maheshwari community का get together होता है, and there also people know each other. And राजस्थान के सादड़ी गांव से कोई मुंबई आए हैं, तो वो सादड़ी गांव हैं जितने बॉम्बे वाले वो लोग भी मिलते थे. In general, we were always with people, so there was no fear of anything. कुछ भी होगा ना, रास्ते पे नहीं आएंगे. And that is the reason, till the year 2000, business people took such a dashing thing, because कोई डर नहीं था. और अपने यहाँ पे अभी डर बढ़ते गया. डर बढ़ते गया तो सबसे बड़ा डर आ गया among young parents. आज जो हैमरिंग चालू हो गई वो स्कूल के बच्चों के ऊपर. एंड आफ्टर दैट वॉट एवर हैज कम आउट, मुझे नहीं लगता कि उनके अंदर बिजनेस का कोई कैपेसिटी रहेगा. नाउ आई विल टेल यू, अभी ये जरा चालू करो ना. आई स्टडीड अबाउट 3 people. एक आदमी बेंजामिन फ्रैंकलिन 1700 समथिंग में, देन वांडरबिल्ट 1800 समथिंग में, एंड एंड्रयू कार्नेगी 1830 to 1900. ये 200 साल के पीरियड के ये 3 लोगों का नाम है. ईच ऑफ देम रिचेस्ट इन देयर पीरियड ऑफ टाइम. रिच मतलब कैसे ना, अगर टोटल यूएस में $10 है ना, तो $1 वंडरबिल्ट के पास में था. 10% ऑफ द टोटल कंट्रीज वेल्थ कंट्रोल्ड बाय 1%. दैट काइंड ऑफ रिचनेस. All 3 did great contribution in America's history. In fact, Benjamin Franklin's picture is there in the dollar note, whatever picture is there is Benjamin Franklin. Each of the 3 great scientific contribution. Each of the 3 started a university of their own. And each of the 3 had not gone to school. Now, this last statement really is a very terrible statement. They had not gone to school. Now, you know, in logic, there is something called correlation and there is something called causation. Is it that just a coincidence that they didn't go to school? Or school has something to do with this? It took me almost 1 year. This all my study is almost a year ago. To really keep working on it to find out, is school harming people? And if so, why it didn't harm earlier? And that I will tell you, till year 2000 है ना, आप क्या पढ़ते हो क्या नहीं पढ़ते हो ना, घर में किसी को प्रॉब्लम नहीं था. कोई फादर को पता ही नहीं था लड़का लड़की क्या पढ़ रहे, पढ़ना जो पढ़ना है बस. क्योंकि we took school not that seriously. And now that school is taken seriously, it has created 5 serious limitations in life. The first thing is, बेटा फेल नहीं होने का. कुछ भी होगा ना चलेगा, ट्यूशन रखवा लेंगे, ये करवा देंगे, वो करवा देंगे, फेल नहीं होने का. Because if you fail, it is shame on you, shame on us. And a whole society will treat you as a rejected person. If you fail, your peers will treat you as a अभी तेरे से बात नहीं कर सकते, अभी तो हम अलग स्टैंडर्ड में. And another standard which they will not receive you because you are a rejected lot. So in life, never fail. ये लोग कभी स्कूल गए ही नहीं थे. एंड 2000 के पहले बिजनेस वाले भी सीरियसली स्कूल गए नहीं थे, तो फेल होने का डर ही नहीं लगता था.
अरे फेल होते हैं। 2000 तक जनरल बिजनेसमैन ऐसा बोलता है ज्यादा से ज्यादा क्या होगा यार, घर भी देना पड़ेगा, भेज देंगे, भाड़े के घर में चले जाएंगे, वापस उससे डबल घर बनाएंगे, ये सोच सकते थे। अभी ज्यादा से ज्यादा घर चला जाएगा, ये किसी को एक्सेप्टेबल नहीं है। वी कैन नॉट फेल। और फिर करेंगे क्या? तो एक ही तरीका है, जो दुनिया करती है वो मैं करूं, तो मैं फेल होने वाला नहीं हूं ना। होगा तो जो सबका होगा वो मेरा होगा। 2004 में वर्ल्ड आ गया, मॉल बनाएंगे, बॉम्बे के एक ही रोड के ऊपर 25 मॉल का प्रोजेक्ट अनाउंस हो गया। जो सब करते वो हम करेंगे। दिस फियर ऑफ फेल्योर डिड नॉट एग्जिस्ट अमॉन्ग बिजनेस कम्युनिटी बिफोर। सो आई टेल पीपल, आपको सीखना है ना कुछ, आप जाओ स्कूल में, नो प्रॉब्लम, लेकिन थोड़ा अपने ग्रैंडफादर की लाइफ के बारे में भी पढ़ो। आप इवॉन मस्क और स्टीव जॉब के बारे में पढ़ रहे हो, actually they are not as great as they are projected. It's a marketing thing. But your grandfather was certainly great. And every business family comes from such background only. The grandfathers, that generation. And can you imagine, with no money in hand, they were so generous in charity. They had a different guts. वो गट्स चली गई क्योंकि स्कूल ने सिखाया जिंदगी में फेल नहीं हो सकते, बाकी कुछ भी होगा चलेगा। जो सपोर्ट है, जो भी आर्टिफिशियल है, चाहिए तो किसी और को बिठा देंगे। 3 इडियट ने बता दिया ना, किसी और को बिठा देंगे, लेकिन पास होना चाहिए। तो अभी फेल होने का डर एकदम सबसे बड़ा। Nobody is ready to do anything with the slightest doubt of failing, and unfortunately everywhere there is a doubt of failing. तो अगर मैं चलूँ तो प्रॉब्लम है ना, तो मैं चलता नहीं हूँ तो फिर प्रॉब्लम का सवाल ही नहीं है। Second thing the school told is that what matters is syllabus, nothing else. तो syllabus में नहीं है ना, तो मुझे नहीं सीखने का। तो I am into textile in Surat. Somebody next to me is into paper in Bangalore. What I have to do? My syllabus is textile in Surat. Fortunately, Aziz Premji was not covered by syllabus, and that is why he was in cooking oil. किसी ने बोला कि ऐसा कंप्यूटर होता है, उनका सिलेबस में नहीं था, फिर भी उन्होंने स्टडी किया, धंधा भी चालू किया, धंधा फेल हो गया। But because he was already in IT, Y2K boom came, he was at the right point and he got up to it. It's neither that he is a genius nor that we are stupid. The whole point is he was at the right place at the right time. The great thing he did was not constrained by syllabus. And Vanderbilt was a worker. And this period, 1800, there was no steam engine. You can imagine, no car, no automobile, no phone, no electricity, no kerosene, no petrol. So that was a time. So people could travel only with boat which is sail driven. तो सेल में एकदम हवा चलती ना, उसको नीचे खींचना, मतलब मसल्स चाहिए। तो वैंडरबिल्ट वाज अ मजदूर। उसके बॉस ने बोला ये चिट्ठी है ना, वो स्टेट में जाके लॉयर को दिखा, वो जो तेरे को सजेशन देता है वो ले आके मुझे बता देना। इट वाज अ बिग जर्नी। ही वेंट देयर, लॉयर सजेस्टेड समथिंग, ही आर्ग्यूड, बट एज पर दिस इट इज रिटन लाइक दिस। तो लॉयर kept thinking and he changed his opinion and he gave another opinion. Again he argued, but as per this is like this. Finally, जब वो लॉयर इसके बॉस को मिला तो बोला तूने किसको भेजा था ये मैटर के लिए? He knows about the matter more than me. Because for Vanderbilt, तुम्हारा काम मजदूरी का है, एग्रीमेंट पढ़ने का नहीं है, ऐसा सिलेबस नहीं था उसके लिए, तो वो तो सब कुछ सीख सकता था। Andrew Carnegie at 11 years of age was a worker to deliver telegraph. तो अभी टेलीग्राफ डिलीवरी करने का काम है, टेलीग्राफ प्रिंट हो रहा है, तो अभी तक क्या करने का? तो ही ऑब्जर्व कि वो ऑपरेटर कैसे ऑपरेट करता है। एक दिन ऑपरेटर नहीं आया, उसने ऑपरेशन चालू कर दिया, तो ही बिकेम टेलीग्राफ ऑपरेटर। When he was 18, one railway company president wanted a secretary, but who should be able to operate telegraph. And he was eligible. So he became secretary.
1 year, that is 19 years of age, the boss was somewhere out and there was an emergency. एक जगह पे 4 ट्रेन आमने सामने आ गई है. टेलीग्राफ आफ्टर टेलीग्राफ इज कमिंग, वेटिंग फॉर इंस्ट्रक्शन. इसने अपने बॉस के नाम पे सब इंस्ट्रक्शन एक के बाद एक भेजता गया. शाम को जब बॉस आया, उसने बोला देखो भाई मैंने आपके नाम पे ये सब भेजा है. तो बॉस गॉट वाइल्ड. हाउ डेयर यू डू दिस, जो भी करना था कर दिया. अभी क्या है, अभी पहले प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, ठीक है. बाद में जब बॉस ने स्टडी किया, ही गेव इंस्ट्रक्शंस बेटर देन द बॉस हिमसेल्फ. नाउ द क्वेश्चन वाज, वो तो सेक्रेटरी था, उसका कोई सिलेबस तो था नहीं कि भाई तुम बॉस कैसे सोचता है तुम वो भी सीखो. वो तो देखते गया. And then he was made very senior people for the railways at very young age. That is the whole background. And I'll tell you, before 2000, you are check in your family. Your father or grandfather, they were ready to learn anything from anywhere. इतना focused किधर भी नहीं था. Generally एक typical family की story क्या होती है? एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं, फिर क्या चालू करते हैं? दलाली चालू तो कर सकते क्योंकि कोई कैपिटल जरूरी नहीं है. अपने पास में टाइम अनलिमिटेड है तो मार्केट में खड़ा रहने का. मार्केट में खड़ा रहते तो लोगों का रोज फेस देखते हैं, रोज भी लोग अपना भी फेस देखते हैं. फिर किसी से बात करते हैं, बोलते हैं ये बेचने का है, तू देख कोई मिलता है तो ठीक है, वो लेके हम भी किसी लोगों से बात करना चालू किया. फिर ब्रोकरिंग करते करते पता चल गया किसका लेते हैं, किसको बेचते हैं और वो वापस कितनों को बेचते हैं. तो फिर वो ट्रेडिंग में आ गए. अभी ट्रेडिंग में आ गए तो स्टॉक रखने लगे, फिर पता चला कि हम बना सकते तो वो मैन्युफैक्चरिंग में गए. दिस इज हाउ द होल स्टोरी वेंट. Nobody had known anything. You know, you might have heard about this Govind Dholakia. Have you heard about Dholakia? Brilliant speaker. He is very entertaining, very nice, very, very educative. His thing was very clear. अपना एक कदम आगे बढ़ाने का है बस. वो स्कूल तो गया नहीं. किसी ने बोला, बहुत छोटा था, 5-6 साल, 7-8 साल का था. बोला देख सूरत में ये ट्रेनिंग देते हैं फिर काम मिलता है. बोलता है मेरे को स्कूल में जाना है. अरे स्कूल छोड़ना, बाद में काम ही करना है ना, तेरे को अभी काम मिल जाता है. तो गया. एक ही चीज था, जो काम करेंगे ना विल डू बेस्ट. 6 महीना तक 1 रुपया नहीं मिला. वो तो जिसने बोला उसके पे फ्रस्ट्रेट हो गया, लेकिन माल अच्छा बनाने लगा. 6 महीने के बाद में काम चालू हुआ. टिपिकल, आई विल टेल यू दैट जनरेशन. काम करने लगा. अभी एक स्टेप तो मेरे को आगे बढ़ना ही है. तो अभी बोलता है मैं खुद का घंटी डालूंगा. डायमंड पॉलिशिंग में एक छोटा सा राउंड स्टोन रहता है, वो घूमता रहता है, आपको खाली करने का, उसको घंटी बोलते हैं. इज नॉट अ वेरी कैपिटल इंटेंसिव. ओनर बोलता है देख तू अच्छा काम कर रहा है, तेरे को अच्छा पैसा मिल रहा है, तो सब झमेला सर पे क्यों ले रहा है. बोलता है नहीं, मेरे को एक स्टेप तो आगे बढ़ने का ही है. तो अभी उसने घंटी डाला. ओनर बोलता है देन इन दैट केस यू टेक माय वर्क बिकॉज ही नोज ही डज द बेस्ट वर्क. तो ओनर ने ही उसका काम देना चालू कर दिया. अभी काम आने लगा. नाउ इज अर्निंग मच मोर. एक स्टेप तो आगे बढ़ने का ही है. अभी मैं दूसरे का जॉब वर्क क्यों करूं. मैं माल खरीद के मैं पॉलिश करके बेचूंगा. कहां से माल लेते हैं, सूरत में कोई सोर्स है, वो गया वहां से माल लेके करना चालू कर दिया. अभी तो प्रॉफिट और बढ़ गया. अभी क्या करना है, एक स्टेप आगे बढ़ने का है. सूरत वाला कहां से माल लेता है, बॉम्बे से लेता है. तो आई विल गो टू बॉम्बे. एंड नाउ उन्होंने बॉम्बे से माल लेना चालू किया. बहुत कमाई होने लगे. अभी क्या करना है, एक स्टेप तो आगे लेने का ही है. बॉम्बे वाले कहां से माल लेते, बेल्जियम से माल लेते, तो विल गो टू बेल्जियम. दिस इज द टिपिकल बिजनेसमैन स्टोरी. आई विल टेल यू, नो एंटरप्रेन्योर विल बी इन दिस क्लास. इट इज बिजनेसमैन बिकॉज फोकस वॉज वेरी क्लियर. चलना है हमको. और अभी क्या हो गया एजुकेशन से. एक गांव का आदमी अपने घर की ओर जा रहा था. रात हो गई, अंधेरा हो गया. वो तेजी से चल रहा है क्योंकि ये जंगल में जंगली जानवर आते हैं. वो देख रहा है पेड़ के नीचे कोई आदमी बैठा है. पहले तो उसको लगा यहाँ पे कैसे कोई आदमी हो सकता है, हो ही नहीं सकता है. बट फिर नजदीक जाके देखा तो सही में कोई आदमी बैठा था. ही वाज सरप्राइज. कोई अक्ल वाला आदमी और जानकार आदमी तो इधर बैठेगा नहीं. कोई पक्का बाहर वाला आदमी है. वो अपना गाँव की भाषा में बोला, ए इधर क्या कर रहा है. वो एक्सक्यूज मी प्लीज ऐसा तो बोलेगा नहीं, अपना गाँव स्टाइल में बोलेगा. इन सामने वाला पढ़ा लिखा आदमी है. बोलता है हु आर यू टू टेल मी. अभी गांव वाला तो और गुस्से में गया. खड़ा हो नहीं तो एक झापट पड़ेगा इधर से. इधर बैठने का नहीं, इधर जंगली जानवर आते हैं.
ये क्या कोई गार्डन है कि किधर भी जाके बैठोगे? इतना जोर से चिल्लाया कि ये पढ़ा लिखा आदमी थोड़ा नरम हो गया, खड़ा हो गया, सूट बूट ठीक किया, बोलता है देख उधर वो लाइट दिखता है? हाँ दिखता है ना। पता है यहाँ से वहाँ का डिस्टेंस क्या है? 1 किलोमीटर है। 1 किलोमीटर मतलब कितना फुट होता है? 3000 फुट। तुम गांव वाले को क्या मालूम? मैं ही बैठने का बोलने लगा। 3000 फुट में जाऊंगा कैसे? मैं इधर तक आया तभी अंधेरा हो गया, अब मैं कैसे जाऊंगा वहां तक? मेरे पास में टॉर्च है, देख 3 फुट दिखाती है, 3000 फुट चलना है। अभी गांव वाला समझ गया, आदमी थोड़ा ज्यादा पढ़ा लिखा है। उसने बोला देख भाई तेरा टॉर्च दे, हमको तो और कुछ नहीं मालूम, हम लोग मैजिक वैजिक करते रहते हैं, आपके जितना पढ़े लिखे हैं नहीं, मैजिक से हम लोग चलाते हैं, टॉर्च दे। टॉर्च लिया, उसके पे कपड़ा डाला, आबरा का डाबरा, बम बम बोल, बम बम बोल, देख अभी तू चल, तेरे को रास्ता दिखाएगा। वो तो पढ़ा लिखा था, ऐसे थोड़ी मानेगा। उसने डाला, 3 फुट ही दिखा रहा है। ए तू क्या मेरे को मूर्ख समझ रहा है? ये देख 3 फुट ही दिखा रहा है। बोलते तू चल के तो देख। वो आदमी 3 फुट चला ना तो और 3 फुट दिखा, और चला तो और 3 फुट देखा। ये सिंपल चीज है। 3000 फुट चलने के लिए 3000 फुट की लाइट नहीं चाहिए, 3 फुट की लाइट काफी है, खाली चलना चाहिए। और अपना चलना बंद हो गया। The restlessness which people had earlier is not there। और फिर क्या हो गया? 2004-5 में एक तो पैसा ज्यादा आ गया, और फिर क्या हो गया? बीमारी बढ़ने लगी। 2000 तक, I'll tell you, till 2000, मैजिक है ये 2000 वर्ड में, people of the age of 70 also used to get good sleep। 2000 के बाद में 50 के ऊपर लोगों को नींद नहीं आती है, सुबह में जल्दी उठ जाने लगे। अभी जल्दी उठ के करेंगे क्या? आस्था चैनल देखने लगे, और क्या क्या फिलॉसफी करने लगे। और फिर मॉडर्न वर्ड आ गया, वर्क लाइफ बैलेंस। व्हाट अ फैबुलस टर्मिनोलॉजी स्टार्टेड कमिंग इन। इतना पैसा कमा के क्या करना है? 2000 के पहले कभी किसी ने नहीं सोचा था, विल इफ आई एम मेकिंग 100 करोड़ आई विल मेक 1000 करोड़। फॉर व्हाट? फॉर चैरिटी। इंडियन बिजनेस कम्युनिटी ने CSR वर्ड है ना, ये तो इंपोर्टेड वर्ड है। इंडियन बिजनेस कम्युनिटी बिलीव्ड दैट इट इज आवर रोल टू बिल्ड सोसाइटी। Every school in India, every college in India, every hospital in India, every temple in India, every dharamsala in India, every bhojansala in India is built by whom? By the charity of business people. And look at what were they thinking. एक गांव में लोग स्कूल बना रहे हैं, स्कूल बनाने के लिए वो सबके पास में चंदा मांगने जाते हैं। तो एक साहब के घर में आए, अभी जब उन्होंने नॉक किया तो साहब ने खुद दरवाजा खोला। Now the other person was wearing typical मारवाड़ी टाइप का कॉटन का बनियान है, स्लीव्स वाला होता है, बट कॉटन स्टिच प्लेन क्लॉथ, और यहाँ पे बड़ा पैच है। अभी ये इन्होंने बोला हम नमस्ते, हम लोग ये सोच, आइए 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 आप बैठिए, मैं शर्ट पहन के आता हूँ। वो बैठे, वो शर्ट पहनने गए। इसने बोला तूने देखा? हाँ मैंने देखा। तूने भी देखा? हाँ मैंने भी देखा। तो अभी क्या करना है? अभी उसको डोनेशन मांग के एम्बेरेस नहीं करते हैं, खाली इन्फॉर्म करते हैं हम तो सबको बताने चले हैं कि भाई हम स्कूल बना रहे हैं। फिर वो साहब तो शर्ट पहन के आ गए, आप कहाँ के, हम यहाँ के, आप इनको जानते हैं उनको जानते, ये तो क्या बोलते हैं ब्रेकिंग ऑफ द आइस हो गया। बाद में बोलते बताइए क्यों आना हुआ? बस हम आपको बताने आए, हम लोग यहाँ पे स्कूल खोल रहे हैं। अरे ये तो बहुत बढ़िया बात है, तब तो आप चंदा भाई लेते होंगे। अभी क्या करें? आपका कितना बजट है? उन्होंने बोला 10 लाख। मेरा 2 लाख लिख लो। अभी जब उन्होंने बोला ना मेरा 2 लाख लिख लो, तो जो बोलते हैं ना आपको बहुत शौक लगता है ना, तो मुंह से खून निकल जाता है, तो एकदम सफेद हो जाते हैं लोग। तो इनका फेस ऐसे हो गया। वो आदमी डर गया, मैंने कुछ गलत बोल दिया क्या, मैंने कुछ कम बोला, क्या हुआ? अभी वो तीनों बोलते हैं तू बता तू बता तू बता। तीनों एक दूसरे के ऊपर बॉल पास कर रहे, अभी तू बता। फिर फाइनल एक को तो बताना पड़ेगा, आपके जैसे किसी ने बोलना पड़ा। देखिए हम आए तो चंदा मांगने के लिए, लेकिन हमने देखा ना आपके बनियान के ऊपर बड़ा पैच था, तो हमने सोचा कि हम आपसे नहीं मांगेंगे, हम आपको खाली इन्फॉर्म करेंगे। लेकिन आपने तो इतना बड़ा डोनेशन दिया जो हमने कभी सोचा भी नहीं था, आज तक अभी तक किसी ने कोई देगा उतना भी अपने ख्याल में नहीं था। तो आदमी ने तो शर्ट का बटन खोलना चालू कर दिया, फिर खोल के बता, आप इसकी बात कर रहे हो क्या? अरे यार ये तो बनियान पे, ये तो अंदर चला जाता है। पैसा तो अच्छे काम में यूज होना चाहिए ना।
you all come from family where your family believed in this charity. Every family in India believed in this thinking. Post 2000, me became center. I became center. My space became center. And all this is coming from where? Time has not changed. Huh? Time has not changed. We have changed. Because Americans were living life like this for 50 years, for 100 years. Now, suddenly, एक तो हमारा पूरा नेटवर्क टूट गया, अभी तो रिलेटिव्स के वहाँ जा नहीं सकते, गए तो सीधा सवाल आता है क्या काम था? पहले तो हमारा कुछ नहीं था, हमारे छोटे घर थे ना तो भी लोग जाते थे और किसी को पूछना नहीं पड़ता था, सीधा कहीं पे भी रहते अपने शहर के कोई है, गांव वाले पहचान, मतलब सीधा उनके घर पे जाके ही रहते थे, पूछना नहीं पड़ता था। अभी ये सब हो गया ना तो इंटरनली हम लोगों में डर पड़ गया। एंड पोस्ट 2000 अमेरिकन पीपल रियलाइज्ड दैट हम लोग तो बर्बाद हो चुके हैं, तुम इतने खुश क्यों? तो उन्होंने पोस्ट 2000 उनकी जो भी बिलीफ सिस्टम थी ना उसका इंडियंस के ऊपर बॉम्बार्डमेंट चालू कर दिया। तो जो इंडिया वाले सेविंग्स में मानते थे वो इंडियंस ईएमआई में मानने लगे, जो इंडियंस फैमिलीज में मानते थे वो इंडियन अभी सेल्फ में मानने लगे, जो इंडियंस कंट्रीब्यूटिंग टू बिगर थिंग में मानने वाले थे वो सडनली कंजम्पशन में मानने लगे। एंड दे सक्सेसफुल सो मच सो वेल कि अभी तो उनका सिंपल बुक है, आई विल टेल यू द नेम ऑफ द बुक, हिडन परसुएडर्स, रिटन 1957। दे टेल our needle of influence will go in your brain so deep you will think what we want you to think, believing that you are thinking like this. You can't burn money. Fourth thing is, you know, Indians are extremely good at quality, provided you pay for it. तो 2000 रुपये किलो काजू बर्फी भी मिलती है और 200 रुपये किलो भी काजू बर्फी मिलती है, आप जो मांगो वो मिलेगा। अभी जिनको 2000 का टेस्ट है वो 2000 देता है, वो लेता भी है और उसको मिलता भी है। वर्ल्ड ओवर बेस्ट क्वालिटी के जो अवार्ड होते हैं ना, पिछले 10 साल में, पिछले 5 साल में 10 अवार्ड निकले, डेमिंग अवार्ड बोला जाता है उसको, 10 में से 6 अवार्ड इंडियन कंपनीज को गए। वी कैन डू द बेस्ट क्वालिटी एंड फाइनली $1 to 83 rupees इज अ बिग बून। तो अगर आपके फादर या ग्रैंडफादर का जनरेशन आज जिंदा होता ना तो वी वुड हैव स्टार्टेड रिवर्स ईस्ट इंडिया कंपनी, टेकिंग ओवर कंपनीज इन यूरोप। जब अपने यहां सेकंड जनरेशन इतना ढीला हो गया, वहां पे तो एकदम गया। यहां पे आईफोन लगाते हैं और रोज का हिसाब लगाते हैं, आज मैंने कितना स्टेप लिया, मैंने कितना सांस लिया, मैंने कितना पानी पिया। ऐसे धंधा होता है क्या? ईयर 2000 तक हम किधर का भी वड़ा पाव खाते थे, किधर का भी पानी पीते थे, हमको कुछ नहीं होता था। और सडनली अभी तो सब बिस्लरी के सिवा कुछ नहीं पीते, फिर भी हॉस्पिटल में जाते हैं इतने सारे लोग। द रीजन वाज टिल ईयर 2000 वी हैड इन अवर लाइफ वन लाइफ सोर्स विच मोस्ट ऑफ द पीपल टुडे आर मिसिंग, एंड दैट इज कॉल्ड एड्रेनलिन, एक्साइटमेंट। अभी एक्साइटमेंट ही नहीं है। क्या करना है, किसके लिए करना है? हमारा तो एक ही सिंपल फॉर्मूला है, जितना कमाते हो उससे 10 गुना अगले साल प्लान करना है अपने को। किसके लिए करना है वो तुम्हारा प्रॉब्लम नहीं है। गॉड सेंट यू ऑन द अर्थ टू बी वेल्थ क्रिएटर। जो एबिलिटी आपको दी है ना, हर इंसान को नहीं दिया हुआ है। तो यू आर द ड्राइवर ऑफ द होल सोसाइटी। और बाकी के लोग जो भी करे आपको क्या लेना देना, आप आपका काम करो, आपका कर्म बोलते ना, एंड गेट गोइंग इन टू इट। तो when Indian business people look at it today, the world is opportunity. लेकिन अपना तो सिलेबस है ना, बाहर कहाँ से देखेंगे हम लोग? एक मेरा स्टूडेंट है, प्लास्टिक स्टेबिलाइजर बनाता है, 100 करोड़ का प्लांट की बात कर रहे हैं। अरे सऊदी में डाल दो, 60% गवर्नमेंट ऑफ सऊदी गिव्स यू एट 0% इंटरेस्ट फॉर 15 ईयर लोन। मतलब अपने को तो ऐसे ही आ गया। एक लोकल पार्टनर चाहिए हु सेज वेरी क्लियरली मैं खाली पैसा लगाऊंगा, धंधा मुझे नहीं आता है, धंधा तुमको चलाना है। तो
तो 75% वो लगाएगा, 25% आपको लगाना है। आप 10 करोड़ डालो, 100 करोड़ का फैक्ट्री चलाओ। आज सऊदी में हो रहा है, क्यों हमको नहीं दिखता है? क्योंकि हमने सिलेबस में नहीं है। आप इतने सारे स्पीकर आए, लक्ष्मी मित्तल ने तो 1987 में फर्स्ट एक्विजिशन किया था ना, आज उसको कितना 40 साल हो गए, फिर भी बाकी बिजनेसमैन को समझ में नहीं आता है क्या? To acquire a company abroad, do you need money? Lakshmi Mittal 40 years ago acquired a company without paying a penny. तो सिलेबस से बाहर निकलेंगे तो पता चलेगा ना। यही मैं बोल रहा हूं, पहले हमको कुछ भी सुनाई देता। आपने अजय पीरामल का स्टोरी सुना होगा। अजय पीरामल comes from a family very rich, whatever it is. They were having textile mills. सेपरेशन हुआ, 3 भाई थे, एक भाई को एक बिजनेस गया प्रॉपर्टी का और इनके हाथ में आया ये, और उसका दूसरा भाई टेक्सटाइल का बिजनेस आया। एंड सडनली इन बॉम्बे केम दत्ता सामंत यूनियन एंड टेक्सटाइल बिजनेस, ऑल टेक्सटाइल मिल्स इन बॉम्बे क्लोज डाउन एंड ही वाज इनटू शैम्बल्स। तभी एक पार्टी में गए, और पार्टी में ऐसे ही करते ना, वहां पे किसी को लॉयर किसी को बोल रहा है, एक निकोलस है ना फार्मा वाला, उसको कंपनी अपना बेचना है। अभी ये तो टेक्सटाइल का आदमी है। He says, I'll go and talk to Nicholas. वो निकोलस को बात किया, निकोलस बोला what is your background? टेक्सटाइल। तो सामने वाला हंसने लगा, तो तू फार्मा चलाएगा क्या? तो see, I'll give you one guarantee. You give me the company, in next 5 years, it will be among top 5 companies in India. वो सामने वाले ने उसको उस टाइम तो निकाल दिया, but बाद में he later on agreed. He took over Nicholas Piramal at 16 crore. Finally, after 20 years, sold it at 18,000 crore. क्या किया तो हमारी नजर के सामने ना। Now the point was, वो तो फार्मा का आदमी नहीं था। आपके यहाँ से दिलीप संघवी है, he is not a pharma, he is a commerce graduate. So ये syllabus जो है ना, is somehow drastically curtailing our capacity. कोई भी बिजनेस कर सकते हैं, उसमें क्या उतना बड़ा चीज है? एंड सडनली वो डर गए। फिर तीसरा चीज स्कूल ने कमाल कर दिया, एक 80 पेज की हिस्ट्री की बुक है, उसको खींच खींच के 1 साल तक चलाते हैं। वो एज में 400 पेज की हैरी पॉटर जो लोग 1 हफ्ते में खत्म करते हैं, उनको ये 80 पेज की बुक 1 साल तक खींचनी है। 1540 में बाबर इंडिया में आया, आज का सेशन खत्म। फिर अगले हफ्ते बोलेंगे बाबर का बेटा था हुमायूं, खत्म। And somehow we created an impression that learning anything is a big project. So many people say, I am from engineering background, तो मुझे फाइनेंस मालूम नहीं है। मैंने बोला फाइनेंस में सीखने का क्या है? इनफैक्ट आई विल पुट अदर वे अराउंड, आप अगर कॉमर्स फील्ड के हो ना, तो इंजीनियरिंग में भी सीखने का कुछ नहीं है। What is it? Nothing. See, till mechanical engineering, at least it was visible. साइकिल की चेन उतर जाती थी ना पहले, तो आप देख सकते थे कि भाई कैसे चेन चढ़ाने की। मोबाइल में चिप खराब हो जाती ना, किसी को नहीं मालूम पड़ता है क्या होता है। So the whole point is that learning anything became a big project for us. Versus for earlier people, I can learn anything. Govind Dholakia started working on technology, and you can imagine the guy who has not gone to school today is having a net-based diamond auction in which whatever he sells is accepted without question everywhere in the world. He is having ultra high technology platform. At first propaganda नहीं करते हैं, but that's what is happening. वो खाली UPI की बात नहीं करते। इंडिया में तो मैं क्या लोगों को सुनने लगा हूँ, जहाँ पे भी जाता हूँ इंडस्ट्री 4.0, ये आपने देखा अमेजॉन लार्जेस्ट रिटेलर विदाउट अ सिंगल स्टोर, एयरबीएनबी लार्जेस्ट होटल विदाउट अ सिंगल होटल, राइट, उबर लार्जेस्ट। अरे इसमें आप क्यों इतने खुश होते हो यार? आपने 6 एग्जाम्पल पकड़ लिया और मुझे बताते हो, चलो ना मेरे धंधा दे देता हूँ, लगा के दिखाओ। अभी परसों एक प्रोग्राम में था, बड़े कुटपुट में आ गए। यू नो इंडिया में 12 बिलियन यूपीआई ट्रांजैक्शन होते हैं, तो क्या हो गया? अरे एक सिंपल टेक्नोलॉजी है, यूपीआई इज नॉट रियली दैट ग्रेट दैट विल मेक यू सुपर पावर इन द वर्ल्ड। एक छोटा सा चीज को हमने खींच खींच के लंबा कर दिया, एंड देन फॉर एवरीबडी इट बिकेम वेरी क्लियर कि भाई हम तो नहीं समझ सकते। अभी आज ईआरपी की बात करेंगे। व्हाट इज ईआरपी? एक सिंपल फ्रंट स्क्रीन है जिसमें डेटा कैप्चर करते हैं, टेबल्स हैं जिसमें डेटा रिकॉर्ड करते हैं।
आप बोलो वो हिसाब से उसको प्रोसेस करते और आपको रिपोर्ट देते। ईआरपी कौन सा रॉकेट साइंस है, बट समवेयर स्कूल ने दे दिया ना कि भाई हमको तो समझ में नहीं आ सकता, तो आई हैव टू लीव इट ऑन IT पर्सन। तो ईआरपी से एग्जैक्टली उल्टा हुआ जो ईआरपी से होना था। विथ ईआरपी योर कॉस्ट शुड कम डाउन बाय हाफ एंड योर प्रॉफिट शुड डबल। इसके बदले में उल्टा हो गया, प्रॉफिट बिकेम हाफ एंड कॉस्ट बिकेम डबल, बिकॉज एवरी ईआरपी इज अ सुपर फ्लॉप because it was never understood as a ERP at all. जबकि ERP is very simple. The whole thing is जो काम 4 लोग करते ना पूरा महीने में, वो काम कंप्यूटर 1 दिन में करेगा। 1 दिन तो बहुत है, 1 घंटे में करेगा। अरे 1 घंटा भी कंप्यूटर के लिए बहुत है, 1 सेकंड में करेगा। That is the power of computer. So for us, this mindset that learning anything is a big thing. गोविंद ढोलकिया प्लस दिस 3 दे वर वेरी क्लियर, दुनिया में हम कुछ भी करेंगे ना हम सीख लेंगे। एंड्रयू कार्नेगी नेवर गॉन टू स्कूल, स्टार्टेड डिस्काउंटिंग कमर्शियल पेपर, जो आज के फाइनेंस वाले भी बहुत कम करते हैं। कमर्शियल पेपर लंदन जाके डिस्काउंट करने का काम वो उस टाइम कर रहा था। और धीरूभाई अंबानी ने के केस में ऐसा हुआ था, उन्होंने किया ऐसा तो मैं नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन वो टाइम पे ऐसा केस हुआ था कि जितने नॉन रेसिडेंट इन्वेस्टर थे उनके सबके शेयर्स डुप्लीकेट प्रिंट हो गए थे और बाजार में घूम रहे थे। वही चीज वांडरबिल्ट के टाइम में 200 साल पहले हुई। हर्षद मेहता ने जो काम किया वांडरबिल्ट डिड 150 years ago. Now the point is nothing so great. Business is very simple. कोई भी बिजनेस दो ना, क्या इतना बड़ा है, कुछ इतना बड़ा नहीं है, बट स्कूल ने ये डाल दिया। ठीक है, 3 चीज तो मैंने आपको स्कूल का बता दिया। फेल नहीं होने का, 20 सिलेबस, 3rd खींच के लंबा कर दिया, 4th डेडली, मोस्ट डेडली, मार्क्स मैटर, लर्निंग डजंट। मार्क कैसे लाने का ना, बस वही सीखना है। आज 25 लाख लोग कोचिंग क्लासेस में जा रहे हैं। आप JEE, NIT, आप UPSC, कैट एग्जाम पकड़ लो, कोई भी कुछ सीखता नहीं है। कैसे पैटर्न है, कैसे एग्जाम आएंगे, उसमें कैसे लिखने का, कम टाइम में ज्यादा कैसे लिख सकते हो, यही सिखाते हो। बाद में लर्निंग क्या है? Point is learning matter, mark doesn't. That is the reality. स्कूल में कितने मार्क आए ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है लाइफ में। और आई एम 63. बाय द वे, एम आई ओनली 63 और ऑलरेडी 63? ओनली ना, मेरे बारे में सब ओनली बोलते, खुद के बारे में ऑलरेडी लगा देते। मेरे क्लास में, और मैं ओपन चैलेंज देता हूँ, जो भी 40 अप है ना, आपके क्लास में जो मोस्ट यूजलेस बच्चे थे वो किधर है आज? भीख मांग रहे हैं क्या? द पीपल हु आर मोस्ट यूजलेस इन द स्कूल, व्हाट आर दे डूइंग? तो फिर ये कहां से स्कूल का इतना फियर आ गया कि यही चीज है, नहीं करोगे तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी? द पॉइंट इज, लर्निंग का अगर माइंडसेट है ना, तो कोई भी कहीं पे भी किसी से भी सीख सकता है। एंड द 5th एंड द लास्ट थिंग इज, विच इज नाउ द डेडली मोस्ट, learn to receive, never to question. हो गई बात। अभी आपको जो बोला गया, आपका तो काम ही है खाली सुन लेने का, सवाल नहीं पूछने का कि इसके पीछे क्या है। तो suddenly we became people who just started consuming the information being given to us without questioning anything basics. तो अपनी नजर के सामने 2 + 2 साथ में = करके 22 लिखा है, लेकिन ये मेरी समझ में नहीं आया यार, 2 + 2 = 22 कैसे? पूछने का नहीं, अभी बोल दिया ना 22 मतलब 22। सो वी केम अप कम्युनिटी which is now just absorbing, not questioning anything. जबकि again take your father, grandfather, the generation was very clear, अरे दुनिया में कोई भी कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते? I don't know whether you have heard a name of called Mr. Walchand Hirachand. Obviously all these earlier people have never gone to school, na? He is the guy who started the first aircraft manufacturing company in India, the first shipbuilding company in India, the first car building company in India. Okay? It's another matter that in nationalization time, his shipbuilding and air building was nationalized. But the guy can do this. When Jamshedji Tata talks about, भाई यार वहाँ पे मेरा है ना ट्रीटमेंट अच्छा नहीं हुआ तो इंडिया में होटल बनाएंगे, एंड हिज ड्रीम इज टू मेक अ फर्स्ट 5-star होटल इन इंडिया. और गाड़ी के लिए यार इंडिया में कहीं पे भी जाओ गाड़ी वहां से ही आएगी, इंडिया में नहीं, क्योंकि इंडिया में स्टील नहीं है, तो विल मेक स्टील इन इंडिया.
and ultimately country will depend on science, so we should have an Indian Institute of Science. एक आदमी की सोच देखो कितनी है, और अपने यहाँ पे आज क्या आ गया मेरे नीचे. और today the whole thing is मेरा valuation कितना होगा. The whole thing is people who were thinking so big suddenly started becoming so narrow. Relations come, contact come, knowledge come, exploration come. We became island, and that is the real challenge. The opportunities today are in Europe. 1 lakh businesses are on sale in Germany alone. The reason is वहाँ पे second generation is wiped out. वो कुछ काम ही नहीं कर सकते. फर्स्ट जनरेशन जिन्होंने 300% मार्जिन पे धंधा किया है, आज 30% में ना बहुत पेन होता है उनको. एंड वर्किंग फ्रॉम हियर, टेकिंग ओवर अ कंपनी इन यूरोप एंड रनिंग द बिजनेस, फैबुलस बिजनेस. हु इज देयर इन स्पेक्स बिजनेस? अब हाँ, नहीं हम लोग मिले थे ना. GKW का हमारा GKB का हमारा स्टूडेंट फ्रॉम आगरा वाज टेलिंग मी, सर हमारी तो क्या लाइन है, मजदूरी है. बिकॉज दे यूज टू ग्राइंड द ग्लास, प्रोग्रेसिव जो ग्लास होते हैं ना, वो ग्राइंड करते हैं. और अभी ये साहब है ना, तो मैं आपको पूरा चीज़ नहीं बताऊंगा, पार्ट चीज़ बताऊंगा. और हमको एक्स अमाउंट मिलता है, जबकि जो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट है ना, ही इज चार्जिंग मच हायर. मैंने एक बार बोला मेरी कॉस्ट बढ़ गई, मेरे को 10 रुपया बढ़ाना है. वो मेरे को बोलते तेरे जैसे 4 इधर खड़े, देना है तो दे. सर ये तो लोकल बिजनेस है, मैं कहीं पे नहीं जा सकता हूँ, क्या करूँ? दिस इज वॉट हिज सिचुएशन. फास्ट फॉरवर्ड, टेक्स ओवर वन कंपनी इन लंडन एट 1 लाख पाउंड, मतलब कितना हुआ? 80 लाख रुपया हुआ. सिमिलर बिजनेस, पूरी अराउंड की शॉप्स को बोल दिया कंप्यूटर ले लो, आप जो भी मेजरमेंट लेते हो ना कंप्यूटर में एंटर करो. डे एंड में एंड होता है ना, यहाँ पे रात को 2 बजे है, पूरा डेटा इधर आ जाता है, रात को 2 बजे फैक्ट्री चालू होती है उसकी. ओवरनाइट काम करता है, रुत 12 बजे तक पूरा पैकेट तैयार, शिपमेंट 2 बजे आउट, 4 o'clock की फ्लाइट से लंदन. नाउ इन लंदन इट इज कमिंग फास्टर देन फ्रॉम लोकल सप्लायर एट हाफ द कॉस्ट, और इसको 200% प्रॉफिट मिल रहा है. द पॉइंट वॉज, सिलेबस से बाहर देखते ना तो देर आर सो मेनी थिंग्स विजिबल अराउंड अस. एक सिंपल चीज है, भारत फोर्ज, what a company. Baba Kalyani, very educated person, came with arrogance of education, 150 करोड़ का इन्वेस्टमेंट डाल दिया. मोस्ट मॉडर्न फोर्जिंग मशीनरी, तभी तक इंडिया में फोर्जिंग हाथ से होता था. मोस्ट मॉडर्न फोर्जिंग मशीनरी, इंडिया में मार्केट डाउन, 28% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन. मतलब क्या? इंडिया में एक साइकोलॉजिकल स्टेटमेंट है, अगेन दिस इज इंडियन, वेरी यूनिक थिंग ना, उसमें से एक चीज है, पगार देने के पैसे नहीं. वैसे तो देखो ना, पगार अगर नहीं दे सकते हो ना तो कोई बड़ा चीज नहीं है, बिकॉज इन योर होल एंटायर थिंग कैश सैलरी इज नॉट अ बिग थिंग, और कैश फ्लो आगे पीछे होता है. बट इंडिया में ना दिस इज समथिंग कि अगर पगार देने के पैसे नहीं मतलब कंपनी डूब गई. समहाउ देयर इज अ साइकोलॉजिकल नोशन. तो उसके पास में पगार देने के पैसे नहीं थे, एंड देयर वाज अ कंपनी अवेलेबल इन यूके, एंड दिस गाय हैज अ गट्स, he and his CFO goes to acquire the company. I बोलिए यहाँ पगार देने के पैसे नहीं, आप कंपनी एक्वायर करने के लिए चले. तो एक सिंपल चीज़ है, जब पैसा यहाँ के कैश फ्लो की बात करते हैं ना, तो हम एक हैट पहनते, चलो भाई पगार क्या क्या कर सकते, कर लिया. अभी ये हैट जिंदगी भर नहीं पहनना है, अभी ये रख दिया, अभी ये करो, अभी सेकंड हैट एंटरप्रेन्योर चैलेंज लुक आउट. तो गए देखने के लिए. डाना कॉर्पोरेशन यूके में 75 करोड़ का डील हुआ. टोल्ड लैंड बिल्डिंग मशीनरी सब बेच दो, हमको कुछ नहीं चाहिए, हमारे पास में मोस्ट मॉडर्न है. 50 करोड़ तो उसमें से आ गए. अभी 25 करोड़ देना है, लेकिन है क्या आपके पास में? खाली कंपनी का नाम है. क्रिस्लर फ्रॉम यूएस had placed on Dana at European prices next 7 years order. Now Dana places the same thing back to back Bharat Forge at European prices. Bharat Forge goes to the bank and discounts the 7 years order, gets 25 crores and make the payment. इसको स्ट्रक्चरिंग बोलते हैं. बट द पॉइंट इज, पॉकेट में 1 रुपया भी नहीं है ना, तो रुपये की जरूरत नहीं है, सोच चाहिए. एंड दैट इज द बिगेस्ट थिंग. वन ऑफ द बिगेस्ट हैंडीकैप ऑफ इंडियन बिजनेस पीपल इज, आई हैव टू हैव माई बिजनेस. मेरा कंट्रोल होना चाहिए, मेरा हेडेक होना चाहिए,
मेरा लायबिलिटी होना चाहिए, मेरा कमाई होना चाहिए, एवरीथिंग माइन. Whereas the world is changing, and थोड़ा सा देखे ना, then the thing becomes so fast. So there are 3-4 rules that has changed in the last few years, which I have to tell people of my generation. आप तो अभी करंट जनरेशन के होंगे तो आपको तो शायद मालूम होगा. स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, ये स्टेटमेंट सुन के हम लोग बड़े हुए हैं. फिर 2005 में तो वो रेस वापस हुआ था. हेयर ने बोला रेस लगाते हैं, टर्टल बोला क्या रेस लगाना है अभी तुमको, बोलता है नहीं नहीं लगाते ना. अरे क्यों लगाना है, नहीं लगाते, चलो भाई लगाओ. 3, 2, 1 शूट. हेयर अपनी स्पीड से गया, टर्टल अपनी स्पीड से गया, फिनिश लाइन तक टर्टल पहुंच गया. अभी खाली 10 फुट का डिस्टेंस बाकी है. घूम के पीछे देख रहा है कहीं पे हेयर दिखता है क्या, बहुत दूर तक कहीं पे दिखता नहीं है. ठीक है चलो सोया होगा, मैं क्रॉस कर तो कर लेता हूँ. वो घूम के गया तो देखा क्रॉस करके सामने हेयर बैठा है. तभी उसने पूछा हाउ कम यू आर हियर, तो बोलते है क्यों, अपना रेस था, भागने का था, हम भाग के आ गया. नो बट हाउ कम यू आर हियर, यू आर नॉट सपोज टू हैव कम हियर. तभी उसको हेयर ने स्टोरी बोला कि तुमको क्या लगता है खाली तुम्हारे दादाजी ने तुमको स्टोरी बोला, हमारे दादाजी ने भी स्टोरी बोला. एंड वी वर थिंकिंग हम लोग तो तेज है, हम क्यों हार गए. एंड वी रियलाइज वी वर नॉट फोकस्ड. व्हेन फास्ट गेट्स फोकस्ड, स्लो एंड स्टडी का कुछ नहीं होता है. So our generation before was about slow and steady. Today what matters is fast and focused. Then comes we had another thing. खुद मरे बिना स्वर्ग में नहीं जा सकते हो. और एक्चुअल में उस टाइम भी दूसरा भी सेइंग था, लेकिन ये हमने कन्वीनियंटली पकड़ के रखा था. दूसरा सेइंग था वो ज्यादा पावरफुल था. वो बोलते हैं पंड करे सो पेट भरे. खुद करे ना तो इतना कमा सकते हो जिससे पेट भरेगा. जब दूसरों करे ना तो तिजोरी भरे. जब दूसरे आपके लिए काम करते हैं ना तो ही तिजोरी भर सकता है. ये भी सेइंग था, बट बाय कन्वीनियंस हमने यही पकड़ लिया, खुद करेंगे तो ही सब होगा. तो पूरा चीज है ना इंडियन फैमिली बिजनेस में सब नैरो हो गया. एवरीथिंग हैज टू बी माइन. और अगर कोई दूसरा कमाता है ना, इतना दर्द होता है अपने को, इतना दर्द होता है, वी कांट, अपना सब कुछ छोड़ देंगे. मेरा एक बिजनेसमैन के लिए प्रोग्राम है, GOMP प्रोग्राम है, ऑल बिजनेस पीपल आर देयर. अब महीने में 1.5 दिन 12 महीने का प्रोग्राम है. तो आते हैं, फिर मुझे बोलते हैं हमारा फैक्ट्री में आओ ना एक बार, पूरा बिजनेस में ना पूरा वसूल करेंगे. गया फैक्ट्री में, यार मुझे पता है कि लोग मिसमैनेज करते हैं, लेकिन कोई इतना मिसमैनेज कर सकता है क्या. मैंने बोला तेरा प्रॉफिट कितना है, बोलता है 1 करोड़. आई विल टेल यू व्हाट इज टू बी डन. ठीक है, अगर 10 करोड़ प्रॉफिट हुआ ना तो मेरे को फीस देना, नहीं तो फीस मत देना. कैसा डील है. समझो आप हो सामने, आपका ही फैक्ट्री है, मैं आपको बोला आप 1 करोड़ कमाते हो साल का, मैं आपके यहां देखा आप जो भी कर रहे हो, और मैंने आपको ऑफर दिया 10 करोड़ कमाओ तो ही फीस देना, नहीं तो फीस भी मत देना. आपको कैसा लग रहा है. अभी तो मैंने क्या बोला, फीस कहां पूछा है अपने, मैंने पहला प्रपोजल ये दिया. अभी आप मेरे को पूछो कितना फीस, तो अलग बात है ना. लेकिन पहले तो यहां पे ही बात आ गई, हमको धंधा ज्यादा मालूम कि इनको मालूम है ना. मैं इतने साल से चला रहा हूं और क्या 10 कर सकता है. अरे पूछने में क्या जाता है, हाँ बोल देते ना, वो भी हम नहीं बोल सकते. फिर आया कितना फीस, मैंने बोला 60% ऑफ द प्रॉफिट. आप लोग सब हंस रहे हो ना, मतलब कि आपका जवाब क्लियर है. सन्नाटा. फिर है ना 3 मिनट के बाद में एक स्टूडेंट तैयार होता है, आई एम रेडी सर. फिर उसके देख के मैं बाकी सब बोल रहा हूँ, पता है वो क्या सोच रहा है, मैं 9 से ऊपर प्रॉफिट दिखाऊंगा ही नहीं. अरे भाई ये सब हम स्कूल में सीख के आए, तुम क्या हमको ये सिखाएगा. तो वापस साइलेंस. फिर थोड़े टाइम के बाद में एक दूसरा तैयार हो जाएगा, सर आई एम रेडी. मैं बोला पता है वो क्या सोच रहा है, 1 ही साल तो देना है, बाद में तो अपना ही है. इज्जत से क्यों नहीं दे सकते. बताओ ना क्या लॉजिक क्या है आपका, आपकी सोच बताओ, क्यों नहीं दे सकते. आपका तो 1 का 4 हो रहा है ना, और अगर आप में कैपेसिटी थी तो आप कर लेते ना. आज अगर आप ये एग्री करते हो तो आपका 1 का 4 हो जाता है इमीडिएटली. वो नहीं दिखता है. कोई 6 लेके जाता है ना, वो हजम ही नहीं होगा. दिस इज आवर माइंडसेट, एंड दैट इज व्हाई
आप कहाँ किसी को करोड़ रुपया पगार दे सकते हो? जबकि देखो एक अमेरिकन माइंडसेट बिजनेस में क्या होता है, एक सुपरमार्केट था, एक लड़का वहाँ पे आया, कुछ 17-18 साल का लड़का था, मेरे को जॉब चाहिए, इतना कॉन्फिडेंटली जो बोल रहा है, ओनर ने देखा, उन्होंने बोला क्या काम करेगा? बोलते आप बोलो ना जो काम है, क्या काम है आपके पास में? बोलते देख 3 काम होते हैं सुपरमार्केट में, एक तो सेल्स काउंटर पे बेचने का, दूसरा काम रहता है मर्चेंडाइजिंग, होलसेल में लेने का, छोटा पैक करने का, स्टिकर लगाने का, ये सब, और तीसरा बैक ऑफिस में अकाउंटिंग का काम। क्या करेगा? अरे मैं तो सेल्स ही करूंगा ना, और क्या होता है? अच्छा क्या पगार? बोलता है $5 एन आवर। लड़का हंसने लगा, व्हाट इज जोक, $5 एन आवर? ओनर बोलता है तेरे को क्या चाहिए? $30 एन आवर। अच्छा अभी देखिए यहाँ पे बात आ गई, हम लोग क्या बोलेंगे, $30 एन आवर क्या फालतू है क्या, बाहर निकल। अमेरिका वाला क्या बोलता है, ठीक है मुझे क्या मिलेगा, आपका सेल डबल हो जाएगा। नाउ अगेन वी व्हाट वी विल थिंक, ये लड़का मेरा सेल डबल करेगा क्या? लेकिन अमेरिका वाले ने क्या बोला, ठीक है कल से आ जाना, लेकिन सेल डबल होगा तभी पैसा दूंगा। लड़का बोलते कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ हियर इज अ क्वेश्चन, सो मेनी थिंग्स हैपनिंग इन द वर्ल्ड, व्हाई शुड वी जज दैट एवरीथिंग वी नो इज अल्टीमेट? अभी क्या हुआ, 15-20 दिन हो गया, सेल एकदम बढ़ रहा है, नॉर्मल सीजनल सेल है अपना, तो कंपेयर करता है वाई टू डे और ये लास्ट ईयर दिस ईयर, ये सेल बढ़ते जा रहा है, ऐसा कोई फेस्टिवल तो है नहीं, अभी कुछ है नहीं, ये सेल कैसे बढ़ रहा है? उसके दिमाग में नहीं था, वो रखा, सडनली उसको याद आया, अरे वो लड़के को रखा था, जरा सीसीटीवी पे ढूंढो तो, वो कहीं पे था, स्विच ऑन ऑडियो, तो माइक चालू कर दिया, वो सामने वाले को समझा रहा है कि सर आप ये जो फिशिंग रॉड लेते हो ना, यू आर नॉट अ प्रोफेशनल फिशिंग पर्सन, और आपके पास में तो टाइम भी कम रहता है, तो आप सिंगल हेड लोगे, उससे बदला मल्टी हेड लोगे ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फिशिंग गोज अप। ठीक है, और ये स्ट्रगल करने के लिए थोड़ी, ये तो आप रिलैक्स करने के लिए जा रहे हो, तो आपको तो मोटोराइज ही लेना चाहिए। बोलते हैं ठीक है, तो अभी ये कुछ था, ये उससे 3 गुना था, ये उससे 3 गुना था, तो उसने मोटोराइज मल्टी वाला फिशिंग। फिर आप फिशिंग करने के लिए आप खाओगे, मंचिंग क्या करोगे? तो हाँ वो भी सवाल है, तो मंचिंग का सामान, आप कौन से कपड़े पहन के जाओगे? सूट बूट पहन के तो नहीं जा सकते हो, तो फिशिंग के लिए कौन से कपड़े? अरे लेकिन आप फिशिंग करोगे किधर? बोला यार सी, मतलब कॉर्नर नहीं, वहाँ पे तो ऑर्डिनरी लोग करते हैं, स्टेटस वाले लोग हैं ना, वो यॉट चार्टर करते हैं, और अपनी यॉट में जाके जो आप फिशिंग करो, एक्सक्लूसिव रिलैक्स थिंग। ओनर ने देखा ये लड़का क्या से क्या लेके जा रहा है, फिर वो तो हो गया, उसने शाम को लड़के को बुलाया, ये तू ये क्या कर रहा है? बोला क्या हुआ सर? अरे वो आदमी को तूने यॉट चार्टर का भी भेज दिया। कौन से आदमी को? अरे वो फिशिंग रॉड लेने आया। फिशिंग रॉड लेने तो कोई नहीं आया था। अरे मैंने आज सुबह देखा फिशिंग रॉड। अच्छा आप उसकी बात कर रहे हो क्या? वो तो नेपी लेने के लिए आया था। क्योंकि मैं नहीं कर सकता हूं, इसके लिए क्या दुनिया में कोई नहीं कर सकता है क्या? This understanding that there are capable people and we have to give, this is something which is one biggest bottleneck for Indian business people. मेरा एक कोर्स है, वो मेरे लाइफ एक्सपीरियंस से है। बॉम्बे में सिद्धि विनायक टेम्पल है, मैं अंधेरी में रहता हूँ, तो हम लोग है ना मंडे शाम को चल के सिद्धि विनायक टेम्पल जाते हैं। अभी उसके 2 रीज़न हैं। एक रीज़न क्या है कि ये इतना सही गलत काम करते तो भगवान की बुक्स में भी थोड़ा बहुत अपना क्रेडिट बैलेंस हो जाए। दूसरा है ना, दिस इज़ वेरी गुड फॉर ब्रांडिंग। मैं सबको बोलता हूँ, मैं चल के जाता हूँ, एक इमेज बनती है मैं भगवान का आदमी हूँ ना, तो ब्रांडिंग के लिए बहुत अच्छा है। तो चलना एक बात है, लेकिन सबको बताना बहुत अच्छी बात है। एक दोस्त ने मेरे को बोला कितना डिस्टेंस है? बोला 15 किलोमीटर। कितना टाइम लगता है? 5 घंटा। तो एक काम कर, एक घोड़ा ले ले, जल्दी हो जाएगा। अभी आई टोल्ड यू, मैं तो हमेशा रिसेप्टिव हूँ, मेरे को जो भी सब बोलते हैं मैं तो एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन जिंदगी में मैंने कभी घोड़ा खरीदा नहीं। तो क्या हुआ, मैंने तो रिसर्च कर दी, क्या ब्रीड होनी चाहिए, क्या हाइट होना चाहिए, क्या वेट होना चाहिए, कितना एज होना चाहिए, किसका उसका जो बोलते हैं ना फैमिली क्या है, ये सब देख के अच्छा वाला घोड़ा लिया। जब मैं पेमेंट देने गया तभी सामने वाले ने बोला इसको किधर रखोगे? तभी मेरे को पता चला घर में तो नहीं रख सकते हैं। तभी मैंने बोला ठीक है, फिर मैंने एक अच्छा वाला स्टेबल बनाया। जब घोड़ा अच्छा वाला लेते हैं तो अच्छा वाला स्टेबल बनाया, घोड़े को रखा। अब भी मैं सिद्धि विनायक जा रहा हूँ, 5 घंटा ही लग रहा है। मैंने दोस्त को बोला तूने बोला था घोड़ा ले ले जल्दी हो जाएगा, मैंने घोड़ा ले लिया लेकिन जल्दी नहीं हुआ, 5 घंटा ही लग रहा है। वो बोलता है क्या किया तूने? मैंने बोला घोड़ा लिया, अच्छा स्टेबल बनाया, घोड़ा उधर है, मैं चल के जा रहा हूँ। अरे घोड़े को लेके जाने का
ठीक है ना, मैं घोड़े को लेके जाता हूँ, उसमें क्या है। घोड़े को लगाम लगाया, मैं चल रहा हूँ, मेरे पीछे पीछे घोड़ा चल रहा है। अभी तो 6 घंटा लगा। मेरे को बोलता है क्या तेरे को समझाऊं घोड़े पे बैठ के जाने का। सीधा पहले ऐसे ही बोल देता ना, एक थोड़ा थोड़ा इन्फॉर्मेशन देते हैं। ठीक है, घोड़े पे बैठा, अभी तो 3 कदम नहीं चलाना, इतना जोर से नीचे फेंका, 3 हफ्ते का बेड रेस्ट। मैंने बोला यार मेरा लाइफ अच्छा चल रहा था, मैं जाता था, 5 घंटा लगता था, मेरा ब्रांडिंग का काम भी चल रहा था, मेरा तो पर्पस हो रहा था ना। क्या एक तुझे पूछा, तेरा सुना और हालत खराब हो गई। जिंदगी में ना अभी किसी का एडवाइस नहीं लूँगा। बोलते है मेरा भी ऐसा है, अभी ज़िंदगी में किसी को एडवाइस नहीं दूंगा। इतना भी अक्ल नहीं है कि घोड़े पे बैठना है तो सवारी तो आना चाहिए ना, ऐसे ही बैठ जाओगे तो फिर क्या होगा। ठीक है, उसने पहले मेरे को नहीं बोला था, लेकिन ठीक है। अभी ये जो घोड़ा है ना, इस पीपल हु आर फार मोर कैपेबल देन अस, इसको घोड़ा बोलते हैं। जो चीज़ में अपने को 5 घंटा लगता है ना, उसको 1 घंटा लगता है। जो चीज़ हम कर सकते हैं ना, हमसे 10 गुना कैपेबल लोग हैं। घोड़ा रखना है या नहीं रखना है वो अपना चॉइस है। अगर घोड़ा रखेंगे, उसको कैबिन में बिठा के रखेंगे, सब काम हम करेंगे, तो ठीक है ना, सेम स्पीड ही रहेगी, खाली घोड़े का खर्चा ऐड हो जाएगा। इफ फॉर एवरीथिंग द हॉर्स हैज टू टेक आवर अप्रूवल, अरे वो मार्केटिंग का आदमी, उसको मार्केटिंग मालूम है, हमको क्या मालूम। बट इफ ही हैज टू टेक आवर अप्रूवल, ही विल कम डाउन टू आवर स्पीड। एंड इफ यू गिव हिम ऑल द फ्रीडम, इतना जोर से नीचे फेंकेगा, तो वो हॉर्स को खाली 3 हफ्ते का बेड रेस्ट, आपको तो 3 साल का बेड रेस्ट हो जाएगा। अमिताभ बच्चन का लाइफ रुइन हो गया एक घोड़े के ऊपर दाव लगाया तो उसने। घोड़े सवारी आनी चाहिए। द होल थिंग इज वी आर लिविंग इन अ टाइम ऑफ स्कोप ऑफ एक्सपांडिंग बिजनेस लाइक एनीथिंग। ऑल दैट वी नीड टू लर्न is to work with people who are more capable than us. We have to learn to give them freedom also, at the same time control also. That is horse riding. And today, that is the best thing. Of course you have to pay them. But what is the harm? कोई आदमी 4 करोड़ कमा के देता है, उसको करोड़ देने में क्या तकलीफ है। तो हम तो 4 करोड़ जो कमा के देता है उसको बाजू में रख देते हैं। अभी समझो कि 18 साल का लड़का है, आपके यहाँ पे सेल चालू किया, आपने बोला कि क्या करेगा, उसने बोला जो आपको देना है दे दो, 1 साल के बाद में, 6 महीने के बाद में बात करते हैं। 6 महीने के बाद में 4 करोड़ का कमाई करके देता है, बोलता है मेरे को करोड़ रुपया चाहिए। दोगे नहीं दोगे, हम लोग नहीं देंगे। को समहाउ हाथ में से पैसा छूटने में ना अपने से नहीं होता। एंड दैट इज द रीजन व्हाई ऑल द अपॉर्चुनिटीज आर अवेलेबल बट वी कांट ग्रो। सिंपल चीज आ जाओगे, एक पीओसी है। पीओसी मतलब क्या? प्रूफ ऑफ कंसेप्ट है। अगर आप किड्स गारमेंट बनाते हो और आपके पास में एक दुकान है, अगर ये एक दुकान प्रॉफिटेबल है, मतलब कि 10 दुकान प्रॉफिटेबल हो सकती है, तो क्यों 10 नहीं करना चाहिए? दिस इज वेरी द होल क्वेश्चन। सो वॉट एवर इट इज, व्हाई नॉट ग्रो? मैनेज कौन करेगा? अरे पूरी दुनिया में मैनेज हो रहा है, क्या आपके यहां नहीं होगा? कोई अपने से कैपेबल तो है ही नहीं। So when we start learning to work with people who are more capable than us, then we come to the third stage, that is what is most important for today's time. That is, whatever I do, I should be world class. That is called skill. Second, whatever is once proven, na, it has to be scaled up. एक जगह पे हो गया तो फिर 10 करना है। और अभी खाली इंडिया में क्यों? हमारे एक स्टूडेंट का होटल था, पूना में होटल था, थोड़े साल के बाद में आकर बोला सर वी आर एक्सपांडिंग। बोला किधर? पूना में। मैं उसको बोला तेरे को पूना के बाहर कुछ नहीं दिखता है क्या? फिर 2 साल बाद में आया, सर नाउ यू विल बी हैप्पी वी आर गोइंग टू बैंगलोर। तभी तक मैं एडवांस हो गया था। व्हाई नॉट टोक्यो एंड व्हाई नॉट केरो? ये तो अपने रडार में ही नहीं है। एज इफ सिलेबस इज ओनली दिस मच। दिस इज वेर इट इज। सो स्किल है एंड स्केल है, देन इज द क्वेश्चन ऑफ स्पीड। एट व्हाट रेट, इन व्हाट पीरियड you become, if you are 10 crore, 100 crore. We don't have 10-year plans. Korea 1950 was the poorest country in the world. In 1960 among rich, and by 1970 among the richest in the world. 20 साल में तो एक country कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। अपने पास में 5-year plan नहीं है। We have to plan immediately. And this is what is the greatest opportunity for family business. If we learn to work with horse riding, if we get out of our syllabus, if we get to know that we can handle anything,
तो फाइनली गोविंद ढोलकिया का कजिन ब्रदर है, श्याम जी भाई ढोलकिया, ऐसा कुछ नाम है, हाँ, साऊजी भाई ढोलकिया. So in one of his public talk, he says one thing very clearly: I can do anything because God is always with me. And this is the strength that that generation got with their belief in God. आजकल तो क्या है, भगवान की हम पूजा चाहे कितनी भी करें लेकिन भरोसा नहीं रख सकते, तो हमको तो अपना संभाल के ही रखना पड़ेगा. जबकि वो जनरेशन के पास में था भाई जो भी है गॉड इज ऑलवेज विथ मी, तो डर नहीं था. एंड सेकेंड थिंग in their life which they did knowingly or unknowingly, but my research says जो घर में चैरिटी है वो घर में हिम्मत है. जहां से चैरिटी चली गई ना, हिम्मत भी चली गई. So my strong suggestion in every family, whole family should sit together, बच्चों के साथ में, decide one figure, 5,000, 50,000, 1 lakh, 5 lakh, जो भी करना है. Come what may, every month the whole family will sit together, will decide where we will do charity. The whole family will go together to give the charity. Now can you imagine a child who is 5-year-old every month being involved in charity like this? By the time he is 20, what kind of character he has built? हाथ का है ना, साइंस ऐसा है, या तो ऐसा रह सकता है या तो ऐसा रह सकता है, दोनों पोजीशन में नहीं रह सकता. और जिसका हाथ ऐसा है ना, उसको पता नहीं कैसे हिम्मत आ जाती है. लेकिन मैंने जितने भी लोगों को देखा ना, जिसका हाथ ऐसा है, कोविड में सीरियस क्राइसिस, हमारा वो चैरिटी का काम तो चालू रहेगा. कैसे होगा, क्या होगा, कुछ हो जाएगा, और हो गया. दिस अगेन, बिलीफ इन गॉड एंड चैरिटी. If you look back, your father and grandfather and great-grandfather, it had a great role in their life. When we say Indian family system, it is these values which is there, which is most important. And that will happen if we are together. If we are only separate, people are living different places. अभी है ना, आज मैं आया हूँ ना, कल रात को मैं दुबई से आया. यहाँ पे ये लोग क्या करते हैं, वो थर्मल से चेक करते हैं. एंड आई वॉज हैविंग कफ एंड कोल्ड. मेरे को लगा कि अगर ये लोग ने पकड़ा ना, कुछ भी थोड़ा भी टेम्परेचर ज़्यादा है, तो मेरा तो पूरा प्रोग्राम चौपट हो जाएगा. तो समहाउ कोई दूसरा चल रहा था, मैं उसके पीछे चला, सो दैट कैमरा में वो आया और मैं निकल गया. लेकिन जब मैं आ रहा था ना, तो मैंने बोला था कि भाई मेरे को एक कफ एंड कोल्ड हो गया है, एक्सर्शन है. तो मेरी वाइफ ने बोला हल्दी वाला दूध पी लो. तो मैंने बोला तू साइंटिस्ट है, तुझे किसने बोला? तो मेरी मम्मी ने बोला. तेरी मम्मी साइंटिस्ट थी क्या? पीना हो तो पियो, ठीक है. हम लोग तो हल्दी वाला दूध पीते थे और हमारा जुकाम जाता था. अभी सवाल ये है कि उसकी मदर को किसने बोला? ऑब्वियसली ग्रैंड मदर ने बोला ना. इन इंडिया लाइक दिस देयर आर ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ विजडम एंड वैल्यूज. खाली एक ही सवाल है, ये ट्रांसफर करने के लिए ना पीके मूवी देखना पड़ता है. पीके मूवी देखा? कैसे इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होती है? हाथ पकड़ना पड़ता है और आंख बंद करनी पड़ती है. टोटल सरेंडर. इफ यू आर सरेंडरिंग टू योर एल्डर्स, बी वेरी क्लियर, दे आर नॉट योर एनिमीज. अल्टीमेटली व्हाट दे विल टेल यू विल बी गुड ओनली. शायद उस टाइम अच्छा नहीं भी लगे, बट अल्टीमेटली इफ दैट बिलीफ इज देयर, तो बड़ों के सामने नहीं बोलना. ये इंडिया में कितने सालों से, कोई नया थोड़ी है. बट सडनली नाउ द थिंग्स हैव स्टार्टेड चेंजिंग. वी हैव स्टार्टेड क्वेश्चनिंग एवरीथिंग दैट इज इंडियन. एक भाई मुझे बोल रहे हैं कि भाई अपने यहाँ पे ये रक्षाबंधन का त्यौहार है, मेरी बेटी बोल रही है क्या होता है? मैंने बोला बहन है ना, अपनी भाई की रक्षा के लिए वो बांधती है. खाली भाई की रक्षा क्यों, बहन की रक्षा क्यों नहीं? वो बात भी है, लेकिन ये अपनी सिस्टम है. और एक धागा बांधने से रक्षा होती है क्या? तो मैं अभी बेटी को क्या जवाब दूं? मैंने बोला ये मेरा काम है, मैं प्रोफेसर हूँ, आप थोड़ी प्रोफेसर है. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड, एनीवेयर इन द वर्ल्ड, फर्स्ट ऑफ ऑल, हैव यू सीन सेलिब्रेशन ऑफ जेंडर, relation of two gender in this form, brother and sister? This is a very unique. Second, both of them are reminded every year with celebration that other exists. In case of your need, the other is there. In case of others' need, you have to be there.
जरा बताओ ना, दुनिया में एक जगह पे भी तो है, द रिलेशन बिटवीन ब्रदर एंड सिस्टर सेलिब्रेटेड सो मीनिंगफुली, ये अपने यहाँ पे है। ठीक है, ये तो अभी कुछ मजा नहीं है। मेरा जमशेदपुर में प्रोग्राम था, और प्रोग्राम जो अरेंज करते हैं ना, उनको बहुत टेंशन होता है, लोग आएंगे कि नहीं, लोग आएंगे कि नहीं। और फिर है ना, बराबर प्रोग्राम के 10 मिनट पहले वो अपना कुशन बांध देते हैं। तो मेरे को बोल रहे हैं, सर आज डेट गलत हो गया। मैंने बोला क्या गलत हो गया? अभी तो कर दिया है, जो भी है, जो आएंगे आएंगे, लेकिन ये डेट गलत हो गया। मैंने बोला क्या हुआ क्या? आज 14 फरवरी है। तो मैं बोला क्या हुआ उसमें? आपको नहीं मालूम? क्या हुआ क्या? अरे वैलेंटाइन डे ना। वैलेंटाइन डे क्या होता है? बट फॉर वैलेंटाइन डे इन जमशेदपुर बिजनेस पीपल विल नॉट कम इन द प्रोग्राम बिकॉज वैलेंटाइन डे इज सो इंपॉर्टेंट। लेकिन वैलेंटाइन डे का मतलब क्या है किसी को भी नहीं मालूम है, बिकॉज गोरे लोग करते हैं ना। अपना तो अभी एकदम क्लियर है, जो गोरे के थ्रू आ गया ना, कमाल हो गया। तभी तक कुछ नहीं। अरे योग गुरुमुखी विद्या होती है। पतंजलि आदमी था, उसने कुछ योग के बारे में लिखा था। इंडिया में बोला जाता था टीचर शिष्य को सिखाएगा, गुरुमुखी मतलब बाय वर्बल, इट कैन नॉट बी बिजनेस। कोई जाता नहीं था। हमारी कॉलेज में योग कुटीर थे, हम स्टूडेंट को लेके जाते हैं ना, स्टूडेंट को लगता है कि वो कसाई बकरों को लेके जाते हैं ना काटने के लिए, ऐसा भाग जाते थे वहां से। अभी वही स्टूडेंट मुझे बोल रहा है, सर 5 बज गया, मुझे जाना पड़ेगा। मैंने बोला क्या हो गया? नहीं सर, नॉर्मली मैं बोलता हूँ जाना पड़ेगा, तू बोल रहा है सर मेरा योगा क्लासेस, योगा सर है। बोला क्या यार योगा वोगा, जब कॉलेज में था तभी तो जाता नहीं था, लेकिन अभी वर्ड चेंज हो गया। योग था तो अलग चीज था ना, अभी तो योगा हो गया। नहीं सर मैं फीस भर रहा हूँ ना। क्या फीस भर रहा है? 3000 रुपया। मैं बोला क्या यार, एक दिन नहीं गया तो नहीं सर पर आवर। क्या फ्रेश महसूस करेगा वो आदमी जब 3000 रुपया पर आवर करके आप योगा करते हो ना, यू विल फील सुपर। मेरे साथ में ऐसा हुआ, मैं तो देशी आदमी हूँ, वर्षों पहले एयर इंडिया में ट्रैवल करते थे और कोई एयरलाइन ही नहीं था, तो हम लोगों को रॉयल ट्रीटमेंट देते थे। फ्लाइट अगर डिले हो गई ना, कैंसिल हो गई, तो 5 स्टार में अकोमोडेशन देते थे। भोपाल में फंस गए थे हम लोग, जानूमा में एडमिशन दे दिया। अभी 5 स्टार होटल में रुके करने का क्या? तो ऐसे ही चक्कर मार रहे हैं, तो अंदर दिखा स्टीम एंड सोना। अंदर जाके देखा तो प्राइस इज 500 रुपीज दैट टाइम, अभी का 5000 समझ लो। हाँ, लेकिन नीचे एक लाइन में लिखा था फ्री फॉर द रेसिडेंट। मैं तो रेसिडेंट हूँ, तो मैं तो अंदर चला गया। फिर उसने मेरे को गर्म में बिठाया, फिर ठंडे में लेके गया, इधर गया। फिर मेरे को बोलता है कैसा लगा? मैं बोला खत्म हो गया। नाउ द पॉइंट इज, जो आदमी 5000 दे के वहां जाएगा, उसको ही तो स्टीम सोना का इफेक्ट पता चलेगा ना। आप ऐसे ही चले जाओगे तो कहां पता चलेगा? तो ये सब स्टीम सोना से कुछ नहीं होता है, आप पेमेंट देते हो ना, उससे होता है। 2000 की साल में हम कोई योगा भी नहीं करते थे और कोई मेडिटेशन कुछ नहीं करते थे। ये वर्क लाइफ बैलेंस हमको कुछ पता ही नहीं था। हम तो अपना काम करते थे, धंधा कैसे बढ़ाने का, पूरे परिवार का देखने का, पूरे समाज अपना परिवार था। एंड वी वर वर्किंग लाइक दिस, एंड आई कैन गारंटी टू यू, यू कैन आस्क योर फादर, that time people were more happy than whatever that we are talking about. This is the real sum of family business. Family business can, if they recognize their strength, really speaking, conquer the world. Today is the great opportunity. And if we continue to what we are doing, more or less we don't have much chance, because everybody was talking today, नेक्स्ट जनरेशन को सीधा सीधा बोल देते हैं ना, आई डोंट वांट टू फोर्स ऑन यू एनीथिंग, यू नो, यू डिसाइड व्हाट एवर यू वांट। कुछ नहीं होगा तो अपना घर का धंधा है, खोटा सिक्का किधर भी नहीं चलेगा ना, तो अपने धंधे में आने का। व्हाई नॉट गिव फ्रॉम एज टू वेरी गुड क्लैरिटी, धंधा ही करना है। मेरे धंधे में आज मजा नहीं है तो क्या हुआ? जब बिजनेस पर्सन बनेगा ना, तो कोई भी धंधा कर लेगा। ये कोई जरूरी नहीं कि मेरा आज का जो धंधा है वही मेरा धंधा बेटा करेगा। Ultimately, my business was started 30 years ago. My son is going to live 30 years down the line. Of course, things will be different than last. हम उनके character बनाएंगे. That is what it is. And lastly, as far as family women in businesses are concerned, we are living in 19th century. 25 साल पहले मेरा प्रोग्राम था for sons and daughters of business family
10% women participation. Today, 10% women participation. In business, role of women accepted everywhere. But family women role in business is a big question mark. And 50% of the human resource potential of the entire family business community is women. When in front of us Indra Nooyi can do this, she is there at PepsiCo chairperson, not because she is a good looking face. She works and she showed that women can run business. एक जमाना था जब ये अलग था, पूरा मार्केट बड़ा बाजार में था, सब मजदूर लोग काम करते थे, किधर भी पेशाब करते थे, women के लिए टॉयलेट नहीं था, तो हम लोग बोलते हैं कि अच्छे घर की महिलाएं वहाँ पे नहीं आए. But today, there are shining buildings and with all the facilities, and people are working on laptop, and laptop doesn't understand the person is typing is male or female. Today the work has become time neutral, space neutral and gender neutral. So outside hostility has gone down, inside relief has gone up. What has not changed is the ambition. If the ambition is parents don't give ambition to children, to daughters, be great person. My daughter in the 8th standard, क्या करना है उसने बोला Nobel Prize in Physics, मैंने तो पकड़ लिया. मैं किसी को भी पहचान कराता हूँ ना, you know, she is going to win Nobel Prize in Physics, and then I will correct. Nobel Prize मिलने का chance कितना है? 0. But to get Nobel Prize, you have to learn everything about physics and then add to the knowledge of humanity. Our children need such dreams. Not about buying a car or buying that phone or buying the watch. If you say there's a good school, my one friend put his son in one of the best school in Dubai. The serious problem has come because for everything, his son is now coming with the whole idea, मेरे को ये brand ही चाहिए, ये brand ही चाहिए, यही brand चाहिए. 60,000 rupees का टी-शर्ट. स्कूल वाले तो वही लेके आते हैं. उसको लाके दिया, अभी स्कूल वाला उसका फ्रेंड ने बोला ये तो डुप्लीकेट है. Lost total self-control because now everything is dependent on them versus giving a dream to really make a difference to the world. We are not ordinary people. We come from a great family. Life is not judged by money. Life is judged by dreams, making change in the world. So when we give this, again I'll tell you, your past will help you a lot. All that our families need is just go back to your own family, what kind of powerful they were. Unfortunately, we don't write biographies of them. But if you read Govind Dholakia's biography, it's applicable to everyone. There is a book called Dhandha, very small book. It's about 5 businesses. The author says they are Gujarati business people, but I don't think there is anything unique in Gujarati business people. It's a journey of business people, full of thrill, full of excitement, full of doing new things, and full of building things. This is business. Thank you very much. कोई जरूरत नहीं है. बैठ जाइए, बैठ जाइए. हम लोग सर कोशिश यहाँ यही करते हैं कि आउट ऑफ सिलेबस का कुछ करें, इसीलिए हम लोग ये नेटवर्किंग कर रहे हैं. वेरी गुड. आजकल लर्निंग हमारे ख्याल सबसे पहले यही है कि आउट ऑफ सिलेबस हम लोग कैसे काम करें. सब कोई सर बहुत अच्छा कर रहे हैं अपने अपने धंधे में, पर हम लोग भी चाहते हैं कैसे स्केल अप करें और कैसे एक दूसरे को सिखाएं. इनफैक्ट I'll request ICBN Shreyans to please come on stage, and if you could ask a few questions to sir and make this session more interesting. करो करो भी काम दिया है, काम दिया है. See, he is my student. मैंने पहले से इंस्ट्रक्शन दे के रखा है, मेरी तारीफ अच्छी करना तो करेगा. सर I'll add, आपको भी रहना है सर. सर इसका आज अभी सर्जरी हुआ है, ये हॉस्पिटल से आ रहा है क्योंकि आपका क्लास है, तो ये शो करता है कि कितना आपसे जुड़ा हुआ है. That's all.
ऑन करना है। हेलो हेलो हाँ सर कुछ दीजिए मेरे पास में तो है। ओके 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 हाँ। सर अभी आपने जो बात की ना वो एक प्रॉपर धंधे वाली बात की है, ठीक है, जो हम लोग सबके अंदर सीधी जाती है। आपने साथ एक एग्जांपल और दिया कि जब तक योगा की हम लोग फीस नहीं देते हैं तब तक वो योगा वाली फील नहीं आती है, ठीक है। तो आप एक मैनेजमेंट गुरु हैं, आप एक मैनेजमेंट, यू हैव सो मेनी एक्कोलेड्स फॉर मैनेजमेंट। सो अब जब आप उस लैंग्वेज में बात करेंगे ना तो उन लोगों को समझ में आएगा कि ये कोई बड़े मैनेजमेंट वाले गुरु हैं, ठीक है। तो मैं आपको क्वेश्चंस वैसे पूछ रहा हूँ। क्या बोलेंगे? हर 3 वर्ड में स्ट्रेटेजी वर्ड आने चाहिए। इसको मैनेजमेंट के गुरु बोलते हैं। ओके ठीक है। तो एंड मैं आपको पक्का बोल रहा हूँ ये थोड़ा सा ना आफ्टर सच अ हाई एनर्जी I'll try to put in some questions which we all face, but he has mostly answered all of it, okay? I'll still try my best if some questions get covered again. So my first question to you would be, आपने इतने सारे family businesses देखे हैं, you have met so many entrepreneurs, generational entrepreneurs, from 3rd generation, 2nd generation, 1st generation. What is the one thing you have seen where the businesses from zero, they have scaled to a globally most valued company? And what is the one thing which has taken a very big corporation to shambles? First of all, this whole thing about most valued company. Genuinely most valued company. कौन सी है? So HDFC Bank, Reliance, Infosys. ठीक है. Okay. Most of the so-called most valued companies. Valuable. मैं आपको एक चीज़ समझा दूँ, हमारे स्टूडेंट को बोलते हैं, ये दुनिया की जब भी बात करें ना, तो एक हाथी का हमेशा याद रखने का, दिखाने के दांत अलग, चबाने के दांत अलग, ठीक है ना। कोई भी कुछ भी आके बोलता है ना, अभी समझो कि नारायण मूर्ति है, मारुति में ट्रैवल करता है, तो हमको क्यों बता रहे हैं भाई? आप करो ना किस में भी ट्रैवल। नहीं नहीं, ये तो पीआर स्ट्रेटेजी है ना। रतन टाटा ने बर्थडे सेलिब्रेट किया एक यंग लड़के के साथ में, इसमें फोटोग्राफ करके सब जगह पे क्यों डाला? क्योंकि हमको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि बहुत हम्बल आदमी है। लेकिन धंधा तो वो भी करते हैं, धंधा हम भी करते हैं, हमको भी पता है कि धंधे के पीछे क्या क्या होता है। जो भी जितना चमकता है ना उतना साफ नहीं है। उसके लिए आपको बुक पढ़ना चाहिए, साइकोलॉजी ऑफ मनी, एंड इट विल एक्सप्लेन यू। बिल गेट्स उतना ग्रेट नहीं है जितना अपने को बोलते हैं, और कोई कंपनी डूब गई ना तो उतने मूर्ख भी नहीं है जितना अपने को बोला जाता है। There are so many games that are being played. एक जमाने में नरेश गोयल was a star. Today नरेश गोयल is a criminal. एक जमाने में विजय माल्या, all said and done, the kind of businesses that he has created and he has run is phenomenal. How come suddenly became criminal? पर्दे के पीछे बहुत सारी गेम खेली जाती है, आपको और मुझे पता नहीं है। Reliance is not as great a company as we are told. हम स्टूडेंट को लेके जाते हैं रिलायंस रिफाइनरी, 20,000 करोड़ प्रोजेक्ट, देखो देखते हैं क्या कंट्रोल सिस्टम है, क्या रूम है, मॉनिटर है, ये सब चल रहा है। पूरे 20,000 करोड़ कितनी है? हंड्रेड्स ऑफ एकर्स में, एक आदमी रोड पे नहीं दिखता है। फिर सवाल आता है, क्या देखा तुम लोगों ने? क्या रिफाइनरी है, क्या टेक्नोलॉजी है? फिर क्या हुआ? एंड नाउ थोड़ा सा अंदर का बात, आप में से कई लोगों ने देखा होगा रिलायंस के पेट्रोल पंप खुले थे ऑल ओवर इंडिया में, फिर वो बंद हो गए। क्यों बंद हो गए? क्योंकि 100 रुपये में पेट्रोल बनता था, 80 रुपये में बेचने का था। बस रिलायंस ने एक ही काम कर दिया, समझो कि उसका तकदीर अच्छा था या कुछ भी अच्छा। IPCL चेयर का चेयरमैन उससे बहुत इंप्रेस हो गया, उसने 120 रुपये में रिलायंस से लेना चालू कर दिया और वो 80 रुपये में बेच रहा है अभी। समझ गया? 100 रुपये में लेके 80 में बेचती दुनिया भर की कोई भी रिफाइनरी।
खाली रिलायंस रिफाइनरी को ऐसा कॉन्ट्रैक्ट मिला कि वो 120 में पब्लिक सेक्टर यूनिट को बेचेगा और वो पब्लिक सेक्टर यूनिट फिर 80 रुपए में बेचेगा। ये क्यों हुआ? सो द सीक्रेट ऑफ रिलायंस इज मैनेजिंग रिलेशंस। कोई बात नहीं, नथिंग रॉन्ग। भाई अपने लिए खट्टे अंगूर थोड़ी है, क्योंकि हम नहीं कर पाते उसके लिए हम उसके बारे में बोलते हैं। बट इज नॉट दैट ग्रेट अ कंपनी एज इट इज मेड आउट टू बी। ऑल सेड एंड डन, आरकॉम चालू किसने किया था? वो तो मुकेश अंबानी ने ही किया था ना। एक स्टेज पे अनिल अंबानी को दे दिया, लेकिन चालू तो मुकेश अंबानी ने किया था। एंड द होल टेक्नोलॉजी वेंट फट। यहां पे मुकेश अंबानी ने 20,000 करोड़ एंटायर कंट्री ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क, सामने सुनील मित्तल जीरो इन्वेस्टमेंट, पूरा आउटसोर्सिंग कर दिया, मैं खाली मार्केटिंग करूंगा। कहां यहां से यहां कॉम्पीट करते थे? उनके लिए लॉ चेंज हो गया, तो सीडीएमए में वो जीएसएम में भी चले गए। तो ये जो सारा चीज है ना, काफी चीज जितनी दिखती है ना उतनी साफ भी नहीं होती है, और जितनी दिखती है ना उतनी बुरी भी नहीं होती। विजय माल्या कुड हैव बीन समवेयर एल्स अगर कुछ इक्वेशन नहीं बैठते तो। नीरव मोदी, आई नो हिम पर्सनली, वो जो कर रहा था पूरी दुनिया को मालूम था। बट द पॉइंट इज, एक जगह पे कहीं और चेंज हो गई तो बात अलग हुई। सो इफ यू से वी फॉरगेट अबाउट द बिगेस्ट कंपनी, आई विल टेल यू इन जनरल फैमिली बिजनेसेस, जहां पे भी एक्साइटमेंट इज ऑन द वैल्यू क्रिएशन, businesses, families, everyone is grown. Wherever the focus is on me-centered, it's a question of time. And I'll tell you, in your children, if you will develop this whole idea of charity, you'll be doing a great service to them. Because the whole world is saying, mind your own business. But the real life is, mind others' business. That is the whole point. So beautiful, sir. This is so rare to hear from a management guru who speaks about values and Indian values and the strength of that. We generally don't hear this at all. सर मेरे ना आपको सारे क्वेश्चन ना थोड़े से बुक्स वाले लगेंगे, हाँ, तो आप वैसे ही फाड़ते रहिए। आप कोई भी क्वेश्चन पूछो, मुझे जो बोलना है वही मैं बोलूँगा। सर सेकंड है ये, there are two things which we contribute to a business success. One is an EQ, one is an IQ. So what do you think is most important or more important, EQ or IQ, or can any one thing take business to another level, or you need to have a balance? Because it also depends on the entrepreneur, because he might be high on EQ, then he needs to have somebody on IQ. Or what is the one thing which is, if you have to choose one, then what would you choose? Very good. ये हम मैनेजमेंट वालों का हमारा ही काम है। ये हमने वर्ड निकाल दिया EQ। पहले तो IQ था, ठीक है, थोड़ा बहुत समझ सकते थे। हमको क्या है, हम मैनेजमेंट वाले लोग हैं ना, मैं पहले अकाउंट में था, मैं देखा अकाउंट वाले को ना कोई इज्जत नहीं देता। हर कंपनी में अकाउंट की ऑफिस एक कोने में, वहाँ पे लाइट हो या नहीं हो कोई देखता नहीं है, ठीक है। उसका मॉनिटर खराब है या माउस बराबर नहीं चलता है, बेचारा 10 बार मारता है, कोई पूछने वाला नहीं है। तो हम लोगों ने ये स्टडी किया कि ये हमको इज्जत क्यों नहीं मिलती है दुनिया में। तो वी लेट स्टडी किसको इज्जत मिलती है। तो हमने स्टडी करना चालू किया, भाई इज्जत किसको मिलती है। तो देखा डॉक्टर को इज्जत मिलती है, तो हमने डॉक्टर को ऑब्जर्व करना चालू किया। फिर डॉक्टर क्या करता है, सिंपल चीज को कॉम्प्लिकेट करके बताता है। मैं जाके बोलूंगा ना सर्दी हुई है, तो थोड़ी वो भी बोलेगा सर्दी हुई है, तो फिर कोई डॉक्टर के पास में जाएगा नहीं। उसको ऐसा कुछ नाम देना चाहिए जो मैं प्रोनाउंस भी नहीं कर सकूं, और फिर वो लिखेगा ऐसा जो मैं पढ़ नहीं सकता। मतलब ये एक्सपर्ट है। जब हमने डॉक्टर को देखा ना, तो हम भी समझ गए कि हर चीज में ना अपना जार्गन डाल दो। तो भाई पहले हम सीधा बोलते थे कितना रुपया लगा, कितना कमाया, ये बोलो ना। अभी हम लोग बोलते हैं इबिटा, और अभी इबिटा का फुल फॉर्म और उसमें एमोर्टाइजेशन की बात करेंगे, तो जनरली लोगों को ये बाउंसर जाएगा, तो लोगों को लगता है फाइनेंस इज अ वेरी टेक्निकल सब्जेक्ट। तो ये एक मॉडर्न मैनेजमेंट का है। वैसे सिंपल चीज होती है, लेकिन घुमा फिरा के नाम बड़ा बड़ा देते हैं। EQ का मतलब क्या है, जिगर है क्या, इसको EQ बोलते हैं। और IQ का मतलब क्या है, हिसाब लगाना आता है। अगर जिगर है ना, तो हिसाब लगाने वाले को रख सकते हो, और हिसाब लगाना आता है लेकिन जिगर नहीं है, तो आपके लिए वो गाना है। ये इतना डेंजरस गाना है, बट इज सो पॉपुलर एवरी कॉर्नर ऑफ द कंट्री। अभी मैं केरला में था, मैं सोचा वहां पे तो इनको ये नहीं मालूम होगा, लेकिन ये गाना मालूम है हर जगह पे।
देखते हैं आप लोगों को मालूम है नहीं कि हम होंगे एक दिन कामयाब, एक दिन आज नहीं। एब्सोल्यूट क्लैरिटी है। इतने हमारे बड़े बड़े प्लान है, एक दिन हमको करना है, आज नहीं। 5 साल से हमारी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग चल रही है, बिजनेस प्लानिंग चल रही है। जो बिजनेस अपने आप बढ़ता है वो बढ़ता है, लेकिन 1 का 10 करना, 10 का 100 करना, इसके लिए टेक ओवर करना, एक्विजिशन करना, कोलैबोरेशन करना, ट्रैवल करना, ये होता नहीं है। करेंगे एक दिन, आज नहीं। जिगर, इफ यू कॉल EQ, that is the real life. And again I'll tell you, our great grandfathers, they are not that intelligent. जिगर था तो चले गए, तो बात करते गए तो होता गया। Sir, jigar is daring. EQ isn't it emotional quotient where how you feel empathetic to build relationships with people and then they grow it for you, or it is the daring which is? ये देखो, जिसने EQ वर्ड बनाया उसने उसको कुछ भी नाम दिया होगा। जिगर है तो